Okay, mocks, practice question, revising, fair. How should what should be the ideal score of SSCI mock? यार सच में ये क्वेश्चन किसी से भी मत पूछो, ठीक है? देयर इज एब्सोल्युटली नो आंसर टू दिस, बट इफ यू वेर टू पुट अ नंबर, ट्राई टू पुश बियॉन्ड 70, 80 and 85% इन योर CFA इंस्टीट्यूट कैंडिडेट का मॉक्स, कैंडिडेट रिसोर्सेज का जो मॉक्स है। SSCI के मॉक में थोड़ा अगर कमती आपका चले, आई कैनॉट पुट इन अ रियल नंबर टू इट, ठीक है, तो भी चलेगा, बिकॉज दोज मॉक्स आर जेन्युइनली मेड टफर एंड टाइम भी मैंने पर्पसफुली थोड़ा सा कम कर दिया हुआ है। बिकॉज सी द थिंग इज कि द फीडबैक दैट वी हैड फ्रॉम द स्टूडेंट्स इन द पास्ट 2-3 terms is that the level 3 exam is really getting on the difficult side with respect to the time component as well. इतना सारा इंफॉर्मेशन कभी कभी देते हैं इन दैट काइंड ऑफ अ टाइम बीइंग, ठीक है, तो पर्पसफुली हम लोगों ने मॉक्स को उसी तरीके से डिजाइन किया था। what needs to happen is that you people need to very thoroughly look at the grading, जो ग्रेडिंग दिया हुआ है, ठीक है, वो ग्रेडिंग काफी अच्छे से किया हुआ है। एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी थारो विद द कंसाइज आंसर, जो एक तरह से वो स्टफ दिया हुआ रहता है, ठीक है, कि कैसे आप आंसर को एकदम ब्रीफली उल्टा पुल्टा कुछ ना लिख के दे दो, तो ठीक है, दैट वे। क्लॉड से अपना मॉक बना रहा हूँ, वेरी गुड वंश, वेरी गुड। कैन यू प्लीज टेल अस हाउ टू रिवाइज फॉर द कमिंग 2 weeks? व्हाट शुड बी आवर फोकस एरिया? To an extent, let's see if we get the time to address that. Yes, second mock more difficult, great, superb. Mock 1 scored 86 percentile. How do you think it is, Anshika? I think it is extremely good. Take a no doubt about it. Sir, mocks mein how much should be the ballpark? Again, I have answered this. First was easy, yet to revise at asset allocation. See, asset allocation is a very tested topic in CFA level 3. Please revise it right away. Sir, I had a doubt regarding rates in currency. Individual doubts तो अभी difficult है यार करना, ठीक है? Got a doubt. Okay, first mock lengthy, second one was small. Asset allocation में difficulty हो रहा है. Okay, fair. सो वी विल सी, अगर अपने एक और मॉक कुछ करते हैं तो ठीक है, सॉरी बूट कैंप कुछ करते हैं तो वहां पर वी कैन मे बी टॉक अबाउट एसेट एलोकेशन स्टफ एज वेल। ओके, सो आई एम नॉट लुकिंग एट मोर डाउट्स, ठीक है, सो वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग ऑफ विद द सेशन। फिर अपना टारगेट क्या होना चाहिए? दैट नंबर वन, इट शुड नॉट बी कि मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आवर टारगेट शुड बी टू टेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज अ केस स्टडी, ठीक है। what my objective to you guys would be, number one, to obviously explain the question in excruciating details, no doubt about it. Second, how to think whenever you get a particular question. Third, what are the tips and tricks that you can apply in order to enhance your thinking process, be more efficient. Fourth, how to write a typical answer. Fifth, again I'll be talking about the command words a little bit, ठीक है। एंड लास्ट में जाकर के whenever you are doing a question, ठीक है, what I'll just share what I used to do, ठीक है, for a particular question, or rather even अगर मेरा mock जो है, ठीक है, suppose I have given a particular mock, how do I effectively analyze the same so that I do not repeat the same mistake twice, ठीक है, that. And again, this question I have deliberately taken in order to understand कि student लोग कहाँ कहाँ पर mistakes कर सकते हैं, ठीक है, that way. So just let's start, ठीक है। Rodriguez, a portfolio manager at Apex Capital Advisors, some fund management firm, ठीक है, advisory करता है by the way, ठीक है, manages the firm's Asian Growth Equity Fund, ठीक है, this is the fund. The fund is denominated in USD but maintains significant exposure to Asian equity markets, with Singaporean dollar SGD representing the largest currency exposure. ठीक है, pause for a moment and try to feel exactly हो क्या है यहाँ पर, right? So we are a portfolio manager. Suppose आप खुद का बात करो. For example, you have cleared your CFA level 3. The moment you did, you got a job directly in US. ठीक है, आपको सीधा यूएस में एक जॉब मिल गया. फॉर एग्जाम्पल, यू गॉट इन टू से अ हॉक शॉप, राइट, और मे बी यू गॉट अ जॉब इन से अ मैवरिक कैपिटल, ठीक है, वहां पर यू आर मैनेजिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, एंड ओवर देयर आपका एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर, सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ मनी आपका लगाया हुआ है इनटू सिंगापुर, सिंगापुरियन जो स्टॉक्स है या फिर से बॉन्ड्स है उनमें लगाया हुआ है, ठीक है, और नॉट एग्जैक्टली बॉन्ड्स पर से, इक्विटीज में ही लगाया हुआ है, दैट्स द होल लॉजिक, ठीक है। नाउ
बिफोर रीडिंग दिस पर्टिकुलर डेटा आवर टेक्निक और आवर अप्रोच शुड बी कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। आई विल फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन आई एम गोना डिसाइड कि मेरे को करना क्या है। सो इफ आई जस्ट गो डाउन 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 एंड डाउन, हैव अ लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, हैव अ लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। रीड। फर्स्ट कमांड वर्ड इज डिटर्मिन। ठीक है, मतलब मेरे को कुछ चूज करना है। डिटर्मिन इज लाइक अ मल्टीपल चॉइस। ठीक है, डिटर्मिन इज लाइक अ मल्टीपल चॉइस। इसमें क्या होता है कि अगर आप डिटर्मिन सही कर देते हो, ठीक है, तभी आपका जस्टिफिकेशन इवैल्यूएट होगा। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेशन गलत है, इवन बाय फ्लूक अगर गलत है, एंड अगर आप जस्टिफिकेशन एकदम परफेक्ट लिखते हो जो आंसर में लिखा होना चाहिए, द ग्रेडर इज सिंपली नॉट गोइंग टू इवैल्यूएट योर जस्टिफिकेशन। सो डिटर्मिनेशन अगर इनकरेक्ट होता है तो जस्टिफिकेशन गया। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट क्राइटेरिया। ओके, डिटर्मिन बेस्ड ऑन रोड्रिगेज मार्केट एक्सपेक्टेशंस। तो डेफिनेटली अपने बात कर रहे हैं रोड्रिगेज जो कि सिंगापुरियन इक्विटीज में लगाया हुआ है। ही हैज अ पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिंगापुरियन स्टॉक्स जिसमें वो लगाया हुआ है। whether she would want to, yeah, determine based on Rodriguez's market expectations whether she should execute the forward hedge with respect to each of the following criteria 1, criteria 2, and justify your response. ठीक है, तो it is determine, justify, ये क्वेश्चन है। दैट्स द फर्स्ट डायग्नोसिस ऑफ द क्वेश्चन। कुछ एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है, उस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे अपने को ये डिसाइड करना है कि शुड वी कीप द पोजीशन हेज्ड, शुड वी एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर हेज और शुड वी लीव इट अनहेज्ड। ठीक है, तो यहां से मेरे को ना एक क्वेश्चन का क्या फील मिलता है कि अच्छा, तो कुछ डेटा देने वाला है। वो डेटा में मेरे को कुछ ऐसा देने वाला है जिससे अगर मैं हेज करता हूं तो मेरा कितना रिटर्न है। ठीक है, और अगर मैं हेज नहीं करता हूं तो मेरा कितना रिटर्न है। ऐसा करके मे बी रिटर्न के डिफरेंस में मेरे को कुछ बोलने वाला होगा ये लोग। ठीक है, सो वी आर इफेक्टिवली आर्ग्यूइंग फॉर हेजिंग और अगेंस्ट हेजिंग। दैट्स द होल फ्रेम ऑफ माइंड एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ के दिस मच इंफॉर्मेशन यू कैन डिराइव। ठीक है, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स, बट हैव अ लुक, कंसिडर ईच क्राइटेरियन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, गोज टू शो कि कुछ क्राइटेरिया बोल दिया होगा। ठीक है, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, ये दोनों क्राइटेरिया को दिमाग में रखते हुए, तो फॉर एग्जाम्पल क्राइटेरिया 1 मेरे को चाहिए, बेस्ड ऑन दैट शुड आई हेज और नॉट। क्राइटेरिया 2 मेरे को चाहिए, बेस्ड ऑन दैट शुड आई हेज और नॉट। ठीक है, बताओ यहां तक इज इट क्लियर? इज द डायग्नोसिस ऑफ द क्वेश्चन क्लियर? कारण आई विश का बात नहीं है, 100% होगा ही, डू नॉट वरी। द डायग्नोसिस ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर, एकदम A to Z पूरा क्लियर है क्या क्वेश्चन है, क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ग्रेट। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। अब व्हेन यू आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर डेटा यू विल बेटर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन से चीज में फोकस करना चाहिए, कौन से चीज में नहीं फोकस करना चाहिए। राइट, सो लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक। Rodriguez is evaluating currency risk associated with the fund's SGD exposure. Of course, वो उतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, एसजीडी एक्सपोजर का ही देखेगा। She develops the following expectations for the next 12 month. एक साल का फोरकास्ट है। ठीक है, expected return of the Singaporean equity holdings is 11.8% positive, right? This is RFC, if you remember. अपना जो RDC का फॉर्मूला होता था, इट यूज टू बी स्टॉक का रिटर्न एंड करेंसी का रिटर्न। मैं इस तरीके से सोचता था। ठीक है, मेरे को अगर मेटा में इन्वेस्ट करना है, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन मेटा, और इफ आई वांट टू इन्वेस्ट बीइंग इन इंडिया आई वांट टू इन्वेस्ट इन एप्पल, राइट? तो मेरे को एप्पल के शेयर प्राइस चेंज होने का रिटर्न मिलता है, कॉल इट स्टॉक का रिटर्न, दैट इज RFC, रिटर्न ऑन फॉरेन एसेट। ठीक है, एंड मेरे को यूएसडी जो है, मैंने तो बेसिकली रुपीज से तो मैं एप्पल का शेयर नहीं खरीद सकता हूं, मेरे को रूपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा टू यूएसडी, तो हो गया मेरा करेंसी का एक्सपोजर। राइट, तो एक तो मैं बेट ले रहा हूं कि काश यूएसडी स्ट्रांग हो जाए, सेकंड मैं बेट ले रहा हूं कि काश एप्पल का जो रिटर्न है वो भी एकदम बढ़ जाए। तो दो कंपोनेंट हो गया, वन प्लस RFC इंटू वन प्लस RFX। दैट इज द होल लॉजिक ऑफ RDC, डोमेस्टिक रिटर्न। ठीक है, तो यहां पर मेरे को सिंगापुरियन इक्विटी RFC का रिटर्न दिया हुआ है 11.8%। ठीक है, अलग से मेरे को यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया हुआ है 18%। ठीक है,
कुछ नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, क्लासिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रॉब्लम, द एमवीओ स्टफ, ठीक है, वही बात करते हैं अपने। एमवीओ में अपने क्या इनपुट करते हैं, वी इनपुट बेसिकली द एक्सपेक्टेड रिटर्न, वी इनपुट द स्टैंडर्ड डिविएशन, वी इनपुट द कोरिलेशन अमंगस्ट एसेट्स, ठीक है। इससे मेरा एफिशिएंट फ्रंटियर वगैरह सब कुछ बनता है। तो क्लासिक मेरे को रिस्क रिटर्न का डेटा दिया हुआ है, डू नॉट बी अफ्रेड कि इतना डेटा क्यों दिया है, ठीक है। तो मेरे पास अगर आर एफ सी आ गया एंड मेरे को टू हेज टू नॉट हेज, ये वाला आर्ग्यूमेंट मेरे दिमाग में आ जाएगा, ये पूछने वाला है टू हेज नॉट टू हेज, ठीक है। तो रिटर्न्स का कुछ हो सकता है, मे बी एसडी का कुछ हो सकता है, मे बी शार्प रेशियो का कुछ हो सकता है। इंस्टेंटली मेरे दिमाग में ये दो तीन चीजें आते जाता है, ठीक है। सो रिटर्न्स का जब अपने बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर वन आर एफ सी, और आर एफ एक्स का भी मेरे को कुछ चाहिए। हैव अ लुक एट द थर्ड बुलेट। एक्सपेक्टेड यूएसडी पर एसजीडी स्पॉट रेट इज 0.77। टेल मी, इज इट अ फोरकास्ट और इज इट द करंट यूएसडी एसजीडी स्पॉट रेट? क्या फोरकास्ट दिया हुआ है 0.77 और इज इट लाइक दैट? ओके, ग्रेट ग्रेट, सुपर्ब सुपर्ब, दिस इज द फोरकास्ट, ठीक है। दिस इज द फोरकास्ट। तो दैट मीन्स अगर मेरे को आर एफ एक्स का रिटर्न निकालना है, आर एफ एक्स कितना होगा, ठीक है, कि करेंसी का रिटर्न क्या होगा, तो मेरा बेसिकली इफ आई टॉक थिंक ऑफ दिस एज P1, ठीक है, तो मेरे को एक बेस वैल्यू चाहिए P0। हैव अ लुक एट एग्जिबिट 1 में क्या दिया हुआ है, करंट मार्केट कोट्स यूएसडी एसजीडी का जो स्पॉट रेट है दैट इज 0.75, ठीक है। तो फर्स्ट मिस्टेक आप क्या कर सकते हो यहां पर, मे बी आप यहां पर ये एग्जिबिट 1 जो दिया हुआ है ना, इसको सीधा इग्नोर करके यू वुड इमीडिएटली स्टार्ट कैलकुलेटिंग, राइट। वर्स्ट मिस्टेक ऑफ ऑल टाइम, ठीक है, वर्स्ट मिस्टेक ऑफ ऑल टाइम, दैट इज इफ यू आर टेकिंग नोट्स, टेक नोट्स। दैट इज बिफोर रीडिंग अ चंक ऑफ डेटा, ठीक है, यू विल नॉट टच योर कैलकुलेटर, यू विल नॉट टच द पेन और स्टार्ट सॉल्विंग। सॉल्व मत करो, पहले सोच लो कि कैसे मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, दैट क्या डेटा मेरे को चाहिए होगा, दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो द पॉइंट इज दैट कि आई हैव द P1 and I also have the P0, right? I can very easily find out RDC, right? And standard deviation दिया हुआ है मेरे को, and correlation दिया हुआ है मेरे को। Can I solve this question now? Tell me. Can I solve this question now? I am not asking you to solve. Please do not solve. लेकिन क्या मैं इसको अभी सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को? Somebody is saying yes, somebody is saying no. Go ahead. No, haven't seen the criteria. Exactly, Atharv. Exactly, exactly. Very good, very good, very good. That goes to show that you people are not jumping to take your calci, ठीक है? So somebody had said yes, please resist the temptation. First देखो, मैंने purposefully criteria को छुपा के रखा था। Question आपके दिमाग में रहना चाहिए, मेरे को पहुंचना कहां पर है, right? So these are the criteria. ठीक है। Rodriguez is considering using 1 year forward contract to SGD and buy USD fully to basically होगा sell SGD and buy USD fully to fully hedge the currency risk. We are pretty clear, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर हेज किया जाएगा, ठीक है, यूजिंग द यूएसडी एसजीडी फॉरवर्ड रेट, दैट मीन्स मेरा एसजीडी में इन्वेस्ट किया हुआ था, दैट मीन्स मेरे को फॉरवर्ड सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा 0.78 या 0.79 कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? 0.78, वेरी गुड कुणाल। बिड रेट एप्लीकेबल होगा, क्लियर कट, ठीक है। बाकी लोग जो भी बोल रहे हैं, आई एम अस्यूमिंग कि एट दिस स्टेज आप एकदम समझ के लॉजिकली बोल रहे हो, ठीक है। दैट वे तो मेरा, अब मेरे पास थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन और आ रहा है, लेट्स सी। शी विल एग्जीक्यूट द हेज इफ शी कैन अचीव द फॉलोइंग रिस्क रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स। अब क्राइटेरिया देखो, increase the fund's expected return by at least 200 basis points। बोलना क्या चाह रहा है, अगर मैं फॉरवर्ड हेज करती हूं, ठीक है, तो हेज करने की वजह से मेरे को जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा दैट विल फर्स्ट ऑफ ऑल बी हायर देन अनहेज्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न, फेयर। लेकिन वो रिटर्न भी जो है ना, वो 2% या 200 बेसिस पॉइंट या उससे ज्यादा होगा, ठीक है। टेल मी, क्या क्राइटेरिया आपको क्लियर है? इज द क्राइटेरिया क्लियर टू यू गाइस? Do not think of solving immediately. Is the criteria clear to you guys? I want a response from everybody. ठीक है, सुपर्ब।
You can just write it in your copy, increase the return by 200 basis point. No sir. Okay, so Shaki basically बोलना क्या चाह रहा है, that I have actually invested in Singaporean equities, right? If I have invested in Singaporean equities, अगर मैं बेसिकली पोजीशन को अनहेज्ड छोड़ देता हूं तो मेरा एक एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा। लेकिन अगर मैं पोजीशन को हेज करता हूं या हेज करती हूं तो मेरा एक एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा। शी इज थिंकिंग कि अगर हेज करूंगी मैं तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो ज्यादा आएगा। लेकिन सिर्फ ज्यादा आने से नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड, हेजिंग इज नेवर फ्री, हेजिंग इज ऑलवेज कॉस्टली, ठीक है। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इफ आई हेज राइट, तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न अनहेज्ड पोजीशन से 200 बेसिस पॉइंट ऊपर आएगा। इज दिस क्लियर टू यू नाउ शाकी? या तो हेज करने के बाद 200 बेसिस पॉइंट मिलेगा। ठीक है, फेयर फेयर फेयर। नाउ दिस इज हाउ, फर्स्ट अगेन अभी तक मैंने कुछ भी कैलकुलेशन कैलसी वगैरह कुछ भी आई हैव नॉट टच्ड। ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दैट दिस इज माई इंटायर डेटा इन वन प्लेस, राइट? यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, आरडीसी जो है अनहेज्ड इजीली निकाल पाओगे, राइट? अगर आप हेज करते हो चीज को, अगर आप हेज करते हो, देन इन दैट केस आपका जो करेंसी का रिटर्न आएगा ना, करेंसी का रिटर्न, वो 0.75, सॉरी, वो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आपको मिलेगा या आपको फॉरवर्ड रेट मिलेगा, बताओ? एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट यू विल गेट और द फॉरवर्ड रेट यू विल गेट? टेल मी। If you execute the hedge, will you get the forward rate or the expected spot rate? Superb, 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 amazing, great. Everybody is giving the right answer. विद्या, स्पॉट रेट तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हेज करते हो, दैट गोज टू शो, आपने तो रेट को वहां पर लॉक कर दिया ना। तो कौन से रेट पे आप लॉक कर रहे हो? यू आर लॉकिंग इट एट द 0.78 का रेट, ठीक है। दैट्स द होल लॉजिक। अब हेजिंग का क्वेश्चन आ ही क्यों रहा है, ठीक है, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंड मैनेजर। ये बंदा क्या देख रहा है कि देखो, मेरा एक्सपेक्टेशन है दैट द रेट यूएसडी एसजीडी इज गोइंग टू बी 0.77, राइट? लेकिन फॉरवर्ड जो है ना बाजार में, वो 0.78 पे ट्रेड हो रहा है, तो मैं सीधा अभी फॉरवर्ड मार के लॉक कर लूं ना। फिर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिकम्स, यार अगर 200 बेसिस पॉइंट के ऊपर मेरा नहीं होता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरा 200 बेसिस पॉइंट या उससे ऊपर नहीं होता है, देन देयर इज नो सेंस इन एक्चुअली डूइंग द हेज, राइट? टेक दिस मच इंफॉर्मेशन, सॉल्व फॉर जस्ट क्राइटेरिया वन, एंड देन लेट मी नो, ठीक है? टेक दिस मच इंफॉर्मेशन, सॉल्व फॉर क्राइटेरिया वन, ठीक है, एंड देन लेट मी नो। सबसे पहले आपको करना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द अनहेज्ड आरडीसी, ठीक है। देन आपको करना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द हेज्ड आरडीसी। हेज्ड आरडीसी में बस एक ही चेंज होगा, आर एफ सी रिमेन्स द सेम, लेकिन आर एफ एक्स वाला जो पार्ट है उसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग 0.77 यू हैव टू यूज 0.78। दैट्स द होल लॉजिक। फेयर। लेट्स डू समथिंग, राइट? लेट्स डू समथिंग। या मेरे को सबसे पहले बताओ कि आप लोगों का अनहेज्ड रिटर्न कितना आता है, अनहेज्ड आरडीसी कितना आता है? अनहेज्ड आरडीसी कितना है? यस, एवरीवन इज क्लियर दैट अनहेज्ड आरडीसी इज 14.78, राइट? तो इट इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू बी 1.118 इंटू ये 0.77 डिवाइडेड बाई 0.75। अनफॉर्चुनेटली आई कैनॉट शो यू द कैलसी ओवर हियर, बट इट इज 14.78, ठीक है। तो 14.78 आया। हेज्ड रिटर्न कितना आता है मेरा, हेज्ड? लेट मी नो, हेज्ड रिटर्न कितना आता है? सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, एवरीबडी हैज कैलकुलेटेड इट करेक्टली, इट इज 16.27%, ठीक है, 16.27%। तो अगर हेज करता हूं तो मेरा 16.27% आता है। अनहेज अगर मैं छोड़ देता हूं तो इट इज 14.78, राइट? नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? ग्रेट 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 ग्रेट। या सो इन दैट केस व्हाट डू यू डू? आप क्या करोगे इसको? आप ऑब्वियसली क्राइटेरिया वन को रिजेक्ट करोगे, है ना? यू वुड वांट टू रिजेक्ट क्राइटेरिया वन। दिस इज वेयर आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर, and randomly I'm going to unmute somebody and I'll ask that person, if you were to write this exam, write this answer in the exam, how do you write it?
ठीक है, हाउ डू यू राइट इट? लेट मी जस्ट सी। ठीक है, सो इट्स अ फन गेम। ठीक है, हैंड रेस करने से कुछ नहीं होगा, मैं नहीं देने वाला हूँ मौका। ठीक है, लेट मी सी हु इज द लकी वन। हाउ अबाउट आई आस्क विद्या टू स्पीक आउट? हे विद्या, हाउ इज इट गोइंग? Hello, can you hear me? या आई कैन हियर यू, हाउ इज गोइंग? Yeah, uh, सुपर। I'm just doing नो, mocks. नो वरीज, नो वरीज, लेट मी नो, बताओ कैसे लिखोगे इसका आंसर? I had a doubt in this only. So, In that case, Vidya, let's do something. Let me just mute you. ठीक है, I'll take your doubt. No questions about it. ठीक है, but for the moment, I just want an answer to this question. ठीक है? can I tell? So you can just see whether it's correct or not. हाँ, sure, sure. Go ahead. Yeah. So for criteria one, it's our hedge return. We are getting excess of hedge return. For criteria one, we are getting excess of hedge return. Means in case of unhedged, as compared to unhedged, we are getting more in hedged return, right? Yeah, you are. Up to 1.49 percent. सही है. So is it equal to or more than 200 basis point, which was criteria one? No, it's not. So should you hedge? No, No. because we are not getting fulfill. We are not able to fulfill the Fair, fair. criteria. No problem, no problem. Now, how do you write this answer? क्या लिखोगे एग्जैक्टली आप? दिस इज द सेंसिटिव पार्ट, बताओ क्या लिखोगे आप? हाउ डू यू राइट दिस आंसर? बिकॉज इफ यू कैन स्पीक इट आउट, राइटिंग इज जस्ट गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केस, पीस ऑफ केक. Since it does not fulfill the criteria of 200 basis points, so we should not go ahead with hedging. ठीक है, सो शी इज सेइंग दैट सिंस इट डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप? डू यू गेट एनी मार्क्स इन कंस्ट्रक्टिंग अ लैंग्वेज? No. दैट्स द होल लॉजिक. डू नॉट कंस्ट्रक्ट लैंग्वेज. Okay, that was my doubt only. या Like या we या don't have to write sentence, or it's just the one word, or just the justification for. Correct, correct, correct. Number one, do not construct a language. That's the first thing that you need to remember while writing constructed response answers. ठीक है? Number two, देखो. So Shubh Dedhia has written a particular answer. Reject criteria one. Unhedged return equal to 14.78. Hedged return equals to 16.27. 200 less than 149 basis point. Reject criteria one. तो शुभ, आई थिंक आपका लास्ट वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. 200 इज डेफिनेटली नॉट लेस देन 149. ये सब टाइपोज होता है, बिलीव मी, ये सब टाइपोज होता है. होगा क्या ना, आपका आंसर इज 100% करेक्ट. बट द थिंग इज दैट कि अगर ये सब टाइपो आपका हो गया ना, तो इन दैट केस 0.5 मार्क्स पूरा सीधा डिडक्ट कर देगा. अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू वर नॉट केयरफुल इनफ ओवर देयर. यू मे आर्ग्यू दैट बट मेरा तो सब कुछ सही था, मैंने तो सारा स्टेप्स लिखा था. दे वोंट लिसन टू ऑल दिस. ठीक है, ओके. So हम सो इसे next line में we can write, right? कि means like similar to what he has written, like hedge return is equal to this, unhedged return is equal to this. So since the criteria one means will not write. सिंस, फिर से सिंस द क्राइटेरिया वन क्यों? No, वाई? will not write. So नो. criteria one is equal to not fulfilled because of. क्राइटेरिया, हाँ, अब देखो यहां पर क्या इश्यू होता है. You may write unhedged return equal to 14.78, hedged return equal to 16.27. Conservative way. Okay. If I were to write the answer, I would have said difference dash 149 bips bracket lower than required 200 dash CTR1 not met, hence don't hedge. That's it. Only Why? this much. 149 जो है, 149 वो एक ही तरीके से आ सकता है, दैट इज अगर आपने हेज्ड अनहेज्ड करेक्ट निकाला है तो. 149 कम्युनिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन हेज्ड एंड अनहेज्ड, दैट्स इट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, but suppose, for example, we wanted to separately calculate because we are not sure. फेयर. Then we can write.
100%, मैं तो वही बोला। सी दिस इज, इसलिए तो मैं उसको कंजर्वेटिव बोला ना। यू कैन राइट अनहेज रिटर्न इक्वल टू दिस, हेज रिटर्न इक्वल टू दिस, हेंस डैश, हेंस लोअर देन 200 बेसिस पॉइंट, रिजेक्ट दिस, दैट्स इट। फिर आपको 149 अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। वाई वुड यू गो अहेड एंड टाइप 149? एक भी मेरे को वर्ड टाइप नहीं करना है। इज इट क्लियर? Got it. पूरा क्लियर है? सबको क्लियर है? लेट मी नो, सबको क्लियर है क्या? हाउ टू राइट समथिंग लाइक दिस? सबको क्लियर है क्या? इज एवरीबडी क्लियर विथ हाउ टू राइट, हाउ टू बी मोर एफिशिएंट इन राइटिंग द आंसर्स? फेयर। आई जस्ट अनम्यूट यू। ठीक है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक टिप दे सकता हूं, आई कैन गिव यू अ टिप। लेट मी सी, एक्चुअली सिंस इट इज एन एप्पल सिस्टम, so I'm not very much used to using a particular Apple system. So yeah, let me know if you guys can see my screen. Can you see my screen? Can you see my screen? Fair. The tip that I'm going to give you guys is remove the word the. Sorry. Entirely. इतना अर्ज अगर आपने कंट्रोल कर दिया ना, हर जगह पर अपना कितना बार द द द द द द द अपने लिखते जाते हैं ना, पॉइंट इज दैट इससे आपका पूरा सेंटेंस ही कंस्ट्रक्ट हो रहा है। व्हाई वुड यू वांट टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस? राइट। द लिखना, वो रिजिस्ट दैट टेम्पटेशन। जैसे ही आपको दिमाग में आता है ना द नहीं लिखना है, इंस्टेंटली इट विल गिव यू अ ट्रिगर कि यार मेरे को ना क्या करना, मैंने मेरे को सेंटेंस नहीं कंस्ट्रक्ट करना है, मेरे को इफिशिएंटली आंसर कम्युनिकेट करना है। ठीक है। दैट्स अ मेजर टिप। अप्लाई इट, गेट इट इन योर मसल मेमोरी, गो फॉर इट। ठीक है। सो आई वुड हैव रिटन द आंसर लाइक दिस: डोंट hedge, CTR1 failed, difference 149 bips, lower than required 200। ठीक है। वापस से मैंने बिप्स भी यहां पर नहीं लिखा, क्यों लिखूंगा बीपीएस? ठीक है। दैट्स इट। सी, एक लाइन में मैंने सीधा आंसर लिख दिया। ठीक है। इतना अमाउंट, इतना में ही मैंने आंसर लिख दिया। फिर okay, great. If we do not get exact 149, what if we don't mention 149 BP? What? Will we get full marks? Not hedge, does not fulfill 200? No. इसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा तुषार। सो तुषार इज सेइंग व्हाट विद्या वाज सेइंग अर्लियर एज वेल, सिंस क्राइटेरिया जो है, ठीक है, वो मीट नहीं हुआ, तो अगर मैंने 149 या एनी ऑफ द फिगर्स अगर मैंने नहीं लिखा तो क्या मेरे को मार्क्स मिलेगा? आपको डिटर्मिनेशन का मार्क्स मिल जाएगा। जस्टिफिकेशन का यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स, बिकॉज सपोज मैंने कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया। इफ आई डू नॉट इवन कैलकुलेट एनीथिंग, ठीक है, मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर इफ आई डू नॉट कैलकुलेट एनीथिंग, तभी भी तो मैं वो आंसर लिख सकता हूं। तभी भी क्या मैं वो आंसर लिख सकता हूं या नहीं? टेल मी। तभी भी क्या मैं वो आंसर लिख सकता हूं या नहीं, इफ आई डू नॉट कैलकुलेट एनीथिंग? फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग, लिख सकता हूं ना, दैट्स द थिंग। सो थिंक फ्रॉम द ग्रेडर्स पर्सपेक्टिव। वो सोच रहा है ये कैलकुलेट किया है या नहीं, ये मेरे को कैसे पता? राइट। द मोमेंट यू राइट दैट 149 basis point, the only way in which that 149 can come, the only way in which that 149 can come using this particular data is अगर आपने hedged unhedged correct लिखा हुआ है तो fair। डिटर्मिनेशन इज राइट, जस्टिफिकेशन इज रॉन्ग, पार्शियल क्रेडिट्स 100% मिलेगा आपको। ठीक है। दैट, सो दिस वॉज द फर्स्ट लर्निंग। ठीक है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पोर्शन। चलो, लुक एट क्राइटेरिया 2। Reduce the fund's expected standard deviation by at least 40 basis point। ठीक है। by at least 40 basis points। पहला बात है, मेरे को एक बात बताओ। इफ यू इफ यू इन्वेस्ट, लेट मी जस्ट सी द चैट। फेयर, टेल मी,
इफ यू इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी, ठीक है, इफ यू इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी, फॉर एग्जाम्पल अगेन सेम, मैं इंडिया में बैठा हुआ हूं, मेरे को एप्पल का स्टॉक खरीदना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऐप मेरा जो टोटल पैसा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपीज बहुत छोटा अमाउंट में ले रहा हूं, लेकिन मैं उतना का ही एप्पल का स्टॉक खरीदना चाहता हूं। व्हाट आई एम गोना डू इज मैं 1 लाख को सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा टू यूएसडी, राइट, एंड देन यूएसडी से मैं एप्पल खरीदूंगा, करेक्ट। तो एक तरह से मैंने क्या यूएसडी में जो टोटल पैसा लगाना है वो मैंने क्या इंटायर 1 लाख नहीं लगा दिया, क्या वो मैंने इंटायर 1 लाख नहीं लगा दिया, यूएसडी में पूरा 1 लाख कन्वर्ट कर दिया, गोस टू शो में आईएनआर को सेल किया, यूएसडी को बाय किया, पूरा मेरा जो कॉर्पस था क्या मैंने उसका पूरा ये चीज नहीं किया, किया ना। एंड देन वो पूरा पैसा को लेकर के मैं सीधा एप्पल में डाल दिया। तो इफ आई वेर टू कैलकुलेट द वेट्स इट इज गोइंग टू बी 1 and 1, 100%, 100%, पूरा क्लियर है आप लोगों को। तो अगर मैं लगाता हूं वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू आर इंटू एस डी, यहां पर मेरा तो वेट्स 1 है, राइट। अगर मेरा यहां पर वेट्स 1 है, देन इन दैट केस माई फॉर्मूला गेट्स रिड्यूस टू variance of the stock plus variance of the your currency plus 2 into SD of the stock into SD of the currency into correlation, इसका पूरा रूट। is the formula intuitively clear to you guys? is the formula intuitively clear to you guys? एकदम A to Z पूरा समझ में आ रहा है? Fair. Always remember the formula like this. Nice to know. It was the apt way to think. Correct, correct, correct. So Karan Chawla is having a problem. Samayak is also having a problem. Fair. Let me repeat it. मैं बोलना चाह रहा हूं as simple as that, ठीक है। मेरे को यहां पर इंडिया में बैठ के मेरे को सपोज amazon का शेयर खरीदना है, तो प्रीति एंड समायक एंड योर करण, ठीक है, प्रीति एंड समायक एंड करण, टेल मी समथिंग। ओके, लेट मी जस्ट अनम्यूट एंड एक्सप्लेन दिस एरिया, बिकॉज देखो कुछ भी एरिया अगर अपने को एक्सप्लेन्ड अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है, देन इन दैट केस वी वुड वांट टू मैंने टेक इट फॉरवर्ड, ठीक है। प्रीति गोयल, यस। हे प्रीति, आई होप यू आर गुड। Hey Preeti, are you good? Hello? I think you're on mute. Hey Yeah. Preeti, how's it Hi. going? You good? Yeah, it's good. Yeah, good Fair, going. fair, fair. Now, debate with me, ठीक है? Level with me, argue with me. First of all, suppose मेरे को अगर Amazon का कोई शेयर खरीदना है, Amazon का मेरे को शेयर खरीदना है, ठीक है? Yes. ठीक है। क्या मैं आईएनआर में खरीद सकता हूं? मेरे पास रुपया है, आईएनआर है, क्या मैं खरीद सकता हूं उसको? आईएनआर में खरीद सकता हूं। Amazon is quoted in USD by the way. No, we I have to can't. convert INR and USD. से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपया है, मेरे को 1 लाख रुपया का अमेजोन खरीदना है, ठीक है। तो मैं तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम 1 लाख को कन्वर्ट करोगे टू यूएसडी, देन Yeah. यूएसडी से तुम खरीदोगे अमेजोन का शेयर। Yes. इज इट क्लियर? अब 1 लाख को तो आपने पूरा कन्वर्ट किया यूएसडी में, इफेक्टिवली व्हाट यू डिड इज यू बॉट यूएसडी, सोल्ड आईएनआर, इज इट द केस? Yes. क्लियर है इतना? यू बॉट Yes. यूएसडी, सोल्ड आईएनआर, दिस इज द केस। गिवन Yes. दैट यू बॉट यूएसडी, कितना का आप यूएसडी बाई किए? पूरे 1 लाख का ही बाई किए। Yeah. तो कहना इससे आपने यूएसडी में 100% ऑफ योर वेल्थ लगाया। Yes. देन उस पूरा जो अमाउंट आपका आया, फॉर एग्जाम्पल इट इज 100, ठीक है, तो $100 आप सॉरी $1000 आपके पास आया। यूजिंग दैट $1000 आपने पूरा अमाउंट का अमेजोन का शेयर खरीदा, इज इट करेक्ट? Yes. तो कहना इसे कि आपने एसेट में जो लगाया एंड आपने करेंसी में जो लगाया वो 100%, 1 1 का वेट लगाया। Yes. तो अपने जब अगर वेट स्क्वायर वेरियंस 2 इंटू वेट इंटू कोरिलेशन इंटू एस डी ऑफ ए इंटू एस डी ऑफ बी वाला लॉजिक लगाते हैं, वेट्स तो यहां पर 1 and 1 ही होगा, राइट। Yes. सो इन दैट केस मेरा वेरियंस का क्या फॉर्मूला होगा, इट इज गोइंग टू बी वेरियंस ऑफ Amazon प्लस वेरियंस ऑफ यूएसडी प्लस 2 इंटू वेरी एस डी ऑफ Amazon इंटू एस डी ऑफ यूएसडी इंटू कोरिलेशन बिटवीन Amazon एंड Correlation. यूएसडी। पूरा क्लियर Yeah. है आपको? Yeah. इज दिस टोटली क्लियर फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स? Yes. फिर ठीक है, लेट मी जस्ट नाउ म्यूट यू, ठीक है।
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। दैट वाज द होल आइडिया। आई वांटेड टू अनम्यूट एंड आई वांटेड टू मैंने गिव एवरीबडी अ चांस टू स्पीक एज वेल। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। अब द ट्रिकी पार्ट इज, तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई द फॉर्मूला, आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एस डी ऑफ द सिंगापुरियन इक्विटी का क्या है, देन एस डी ऑफ एस जी डी का क्या है। ठीक है, एस जी डी इज बेसिकली द करेंसी वेर वी आर इन्वेस्टिंग इन। ठीक है, आपको कोरिलेशन भी एकदम बढ़िया से दिया हुआ है, यू कैन फाइंड इट आउट। बट द मेन थिंग इज, क्या बोलना चाह रहा है, टू हेज और नॉट टू हेज। क्राइटेरिया इज दैट कि अगर मैं हेज कर देता हूं, अगर मैं हेज कर देता हूं, ठीक है, देन इन दैट केस मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, विल इट बी रिड्यूस्ड और विल इट नॉट बी रिड्यूस्ड? टेल मी, इफ आई हेज, विल माई स्टैंडर्ड डिविएशन रिड्यूस और नॉट रिड्यूस? आपको ये पूरा आराम से कॉन्सेप्ट दिमाग में लाना है। रिड्यूस, रिड्यूस्ड, 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 रिड्यूस, रिड्यूस। फिर अगेन आपको ये पूरा क्लियर है या नहीं? आई एम स्टिल अगेन गोइंग टू अनम्यूट समबडी एंड आस्क रैंडमली, आई एम गोइंग टू डू इट। ठीक है, आदित्य। हे आदित्य, गुड, हेलो सर, यस ऑल वेल। सुपर। बताओ, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन रिड्यूस होगा या नहीं होगा अगर आप हेज करते हो तो? यस, प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ही हमारा वही है कि दैट्स नॉट द इंक्रीज। आंसर। ऑब्जेक्टिव का बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर आप हेज करते हो तो आपका एसडी रिड्यूस होगा या नहीं होगा? यस होगा सर, होगा, क्यों होगा? क्योंकि वी हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड पॉजिटिव कोरिलेशन डज नॉट कम इनटू द पिक्चर ओवर हियर एट ऑल। दैट्स रॉन्ग। ओके, गिव मी 1 सेकेंड सर। श्योर, करेक्ट योर थॉट्स। लाइकली रिड्यूस। आई वॉज कमिंग फ्रॉम दिस थॉट प्रोसेस कि द पर्पस ऑफ हेजिंग इटसेल्फ इज टू रिड्यूस द। हाँ, somebody is actually giving the correct answer। ठीक है, बताओ बताओ। somebody, जितेंद्र is kind of giving the correct answer। ठीक है, अब बताओ, अब क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या था? then let me reinforce that thought process। सो माई थॉट प्रोसेस वॉज कि द पर्पस ऑफ हेजिंग इटसेल्फ इज टू रिड्यूस द स्टैंडर्ड डिविएशन, इसलिए। हाँ, तो गलत है ना, बिकॉज द पर्पस इज डिफरेंट। मेरा क्वेश्चन है विल इट बी रिड्यूस्ड और नॉट। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाते हो तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। द रीजन इज, देखो, एक चीज सिंपल, ठीक है, एवरीबडी नाउ लिसन एंड स्पेशली आदित्य, आप भी सुनो, सिंस वी आर ऑन टॉकिंग टर्म्स राइट नाउ। अपने बोलना चाह रहे हैं कि, ठीक है, अपने को अगर हेज करते हैं अपने, ठीक है, देन इन दैट केस अपना एस डी ऑफ द करेंसी, एस डी ऑफ सिंगापुरियन डॉलर्स, डोंट यू थिंक इट बिकम जीरो? यस, वी आर इफेक्टिवली स्टैंडर्ड किलिंग इट। डिविएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, टेल मी। The risk factor करेक्ट, which रिस्क comes फैक्टर ना। in. फेयर फेयर Mhm. फेयर, रिस्क फैक्टर। कैन आई से रिस्क फैक्टर इज वॉलेटिलिटी? Yes, yes, definitely. कैन आई से दैट वॉलेटिलिटी इज बेसिकली मूवमेंट? Yes, of the currency part in this The one. moment I lock in a particular rate, doesn't the volatility go away? Doesn't it become zero? Yes, पूरा क्लियर है? correct, correct. Yes, sir. इंस्टेंटली आई कैन से कि मेरा हेज्ड रिटर्न जो मैंने हेज्ड पोर्टफोलियो का एसडी जो होगा, दैट इज जस्ट गोइंग टू बी द स्टॉक का एसडी, बिकॉज करेंसी को तो मैंने हेज आउट कर दिया है। कर दिया, correct. Yes, yes. इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीबडी। इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? कम ऑन, गो अहेड। ब्यूट ब्यूट ब्यूट। ठीक है, लेट्स रोल आउट। ओके, फेयर। तो आपको सिंपली करना क्या है कि अगर आप हेज करते हो देन आपका ये 18% इज एक्चुअली योर स्टैंडर्ड डिविएशन। दिस वॉज द ट्रिकीएस्ट पार्ट ओवर हियर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगर आप अनहेज करते हो देन तो आपका करेंसी का वेरी वॉलेटिलिटी जो है दैट आल्सो कम्स इनटू द पिक्चर, कोरिलेशन कम्स इनटू द पिक्चर। So now you calculate SD कितना आएगा and then you compare it with 18%, see if it is equal to or less than 40 basis point। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो। कुणाल ने तो कैलकुलेट भी कर दिया। रुक जाओ कुणाल, लोगों को भी थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है,
ठीक है, रिप्लाई। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, गो अहेड। एसडी का कैलकुलेशन है, वेट्स भी नहीं है। How is it that you are getting a 19.64, buddies? Let me just check up once. Okay, let me just see. आपका 19.64 कैसे आ रहा है? That's a weird answer, basically. Let me just see. Yeah, 18.27 is basically the unhedged SD, right? 18.27 is the unhedged SD. What I am doing basically over here is कि मेरा, let me just see. So I have the BA2 plus calculator over here. Unfortunately, it doesn't allow me to, this particular laptop does not have the calci, so I cannot show you. But अपने क्या करेंगे? Let's do it together. मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहा हूँ. It is going to be, for example, 18, ठीक है, 18 स्क्वायर आई एम डूइंग 324 STO1, ठीक है, एंड 6 स्क्वायर आई एम डूइंग STO2, ठीक है, एंड देन negative 0.12 is basically STO3. Fair? Now, the point is I'll do RCL1 plus RCL2. ठीक है, ये आया. In fact, what I should be doing is 2 into SD पे into 0.12 करने से better होगा. So I will do 2 into 18 into 6, जो आया into 0.12 negative equals to minus 25.92. ठीक है, STO3. So RCL1 plus RCL2 plus RCL3, I am doing whatever it is. And if I do a square root, we will get to 18.27. राइट, 18.27. और अगर अपने पोजीशन को अनहेज्ड छोड़ते, अगर अपने पोजीशन को अनहेज्ड छोड़ते, राइट, देन इन दैट केस अपना क्या आता? 18. सो बाई एक्चुअल, सॉरी, अगर अपने पोजीशन को हेज कर देते तो 18 आता. तो मेरा क्या जो एसडी रिड्यूस हुआ, ठीक है, मेरा क्या एसडी जो रिड्यूस हुआ, क्या वो 40 बेसिस पॉइंट के नीचे हुआ? क्या वो 40 बेसिस पॉइंट के नीचे हुआ? टेल मी, क्या वो 40 बेसिस पॉइंट के नीचे हुआ? 27 बेसिस पॉइंट्स का ही तो मेरा रिड्यूस हुआ ना, 40 का तो नहीं हुआ, राइट? 40 का मेरा नहीं हुआ रिड्यूस, 27 बेसिस पॉइंट का ही हुआ. दैट इज द होल लॉजिक. सो इन दैट केस मेरे मेरा क्राइटेरिया 2 भी फुलफिल नहीं हुआ. क्लियर? क्राइटेरिया 2 भी फुलफिल नहीं हुआ. नाउ अगेन आई एम गोना डू दिस एक्सरसाइज, ठीक है, रैंडमली आई एम गोना अनम्यूट समबडी एंड आई विल आस्क यू टू स्पीक. इफ यू कैन स्पीक इट आउट, यू कैन राइट इट. ठीक है, ओके. आदित्य को लेट मी जस्ट म्यूट. आदित्य गॉट हिज चांस. लेट मी आस्क Karan Chawla. Hey Karan, let me know if you can hear me. Hi. Go ahead, speak out the answer. So I will be writing just this hedge SD is equal to 27 bips, which is ठीक less है. than 40 bips, therefore reject. I mean, in Hedged? straight No, language, hedge. that is absolutely wrong. I आपने mean, बोला hedged SD is equal to 27 बिप्स. गलत है ना? hedged hedged SD तो आपका 18 आता है. hedged SD is equal to 18.27%, करेक्ट. less than 18%. hedged SD, हाँ, लेस देन 18%, करेक्ट. Reject option 2. Criteria 2. ऑप्शन 2 फेयर, चलेगा, वर्क. ठीक है, चलेगा, एकदम चलेगा. either you write this, or if you don't want to write difference, sorry, reduction in SD is equal to 27, bracket less than 40% required. ठीक है, and ये hence criteria 2 not filled, don't hedge. If I were to write this answer, I would have written exactly like this. Have a look. सेम जगह पर मैं लिख रहा हूं, राइट? दिस इज द सेम क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट है ना? क्या मैं सेम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट लिख रहा हूं? टेल मी, क्या मैं सेम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट लिख रहा हूं? लिख रहा हूं, राइट?
मतलब मेरे को जो ऐसे बॉक्स जहां पर लिखने को मिलेगा वो सेम से वो सेम पार्ट मिलेगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू वेयर आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज ये जो आंसर है ये मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है. दिस इज ऑल्सो समथिंग यू कैन डू. सिंपली इसको मैं क्या करूंगा, सीधा आई एम गोना कॉपी दिस. उतना लिखना ही नहीं है मेरे को. आई जस्ट कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. ठीक है, यहां जा करके आई जस्ट हिट 2. ठीक है, यहां जा करके आई जस्ट हिट 27 pips, which is lower than required. Required 40. Difference in SDF. That's it. लिखना ही नहीं पड़ा मेरे को, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया. डन. बोलो क्लियर है आप लोगों को पूरा? क्लियर है आप लोगों को पूरा? इज इट टोटली क्लियर टू यू गाइस? यस इट वर्क्स. मेरे टाइम पे तो किया था भाई. ठीक है, मैं बोल रहा हूं ड्यूरिंग माई CFA लेवल 3 इट डिड वर्क. यू गॉट अ वार्निंग नॉट टू कॉपी. ठीक है, तो इन दैट केस वहां पर आपको भाई मिल जाएगा. और लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग. अगर नहीं भी मिलता है स्टिल यू हैव दिस फ्रेमवर्क ना. जस्ट नॉर्मली राइट दिस. ठीक है, अगर मेरे को सपोज से फॉर एग्जांपल वहां पर अगर कॉपी पेस्ट मिल जाता है वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा. अगर नहीं मिलता है देन इन दैट केस दिस इज हाउ आई वुड हैव रिटन नो फॉर बोथ. ठीक है, अब उतना मेरे को लिखना ही नहीं है. दैट्स इट. क्या मैंने कुछ भी यहां पर लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट किया? Did I construct any language? Yes, 100%. You need to use a lot of short forms. क्या मैंने यहां पर कुछ भी लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट किया? Did I construct any language whatsoever? No. क्या मैंने यहां पर द यूज किया? Did I use the at all यहां पर? नो. अगर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे को यही चीज अगर द से लिखना पड़ता तो मैं क्या लिखता? द इज लाइक इट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड राइट. मेरे को फिर पूरा लैंग्वेज ज्वाइन करके लिखना पड़ेगा. सॉरी, यहां पर ऐसे ही लिखते हैं क्राइटेरिया 1 फेल्ड कॉमा बिकॉज द डिफरेंस 149 वर्सेस रिक्वायर्ड 200 हेंस रिजेक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक द की वजह से, अब देखो बिकॉज मेरे को द लिखना है तो मेरे को बिकॉज भी लिखना है. ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेंस रिजेक्ट वापस से लिखना है. ऊपर मैंने नो फॉर बोथ लिख दिया इसलिए बिकॉज मेरे को सेंटेंस कंप्लीट करना है. आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दीज छोटा छोटा ट्रिक्स? कोरिलेशन वॉज नेगेटिव. जमा, आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस स्मॉल ट्रिक्स? ये छोटा छोटा ट्रिक क्या आप लोगों को समझ में आता है? मैंने just a very small thing, one particular advice: remove the from your entire dictionary. Automatically your language becomes more powerful. Automatically you start using more action verb words. Automatically you stress less on constructing sentences and you write more efficiently. बताओ क्या आपको क्लियर है ये चीज पूरा? इज इट टोटली क्लियर फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स? लेट मी नो. फेयर. ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so we are done till this particular question. Right? Now, again, I'm gonna read the question first. देखो, जो कंसाइज आंसर है छोटा ही लिखा हुआ है. वैसे इतना भी लिखने का जरूरत नहीं था. ओके, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. पहले मेरे को बताओ व्हाट आर द कमांड वर्ड्स? व्हाट आर द कमांड वर्ड्स? व्हाट आर द कमांड वर्ड्स? लेट मी नो. डिटर्मिन एंड जस्टिफाई. ठीक है, डिटर्मिन एंड जस्टिफाई. Determine and justify which strategy will most likely satisfy objectives at expiration. Now,
the moment I look at the word expiration, am I getting a feeling of derivatives? क्या मेरे को डेरिवेटिव का फीलिंग आ रहा है यहां पर? पहला वाला क्वेश्चन डेरिवेटिव था, एक्सपायरेशन का बात कर दिया, तो मे बी मेरा फॉरवर्ड्स या मेरा ऑप्शन से कुछ करने का मन कर रहा होगा, ठीक है, डेरिवेटिव, तो मतलब डेरिवेटिव से कुछ पूछने वाला है, राइट? योर माइंड शुड रन वेरी वेरी फास्ट. सेकेंड, क्या मेरे को यह भी दिमाग में आ रहा है कि स्ट्रैटेजी मोर देन वन होने वाला है? क्या मेरे को यह दिमाग में आ रहा है कि स्ट्रैटेजी जो दिया हुआ रहेगा दैट इज गोइंग टू बी मोर देन वन स्ट्रैटेजीज दिया हुआ रहेगा? स्ट्रैटेजीज होगा, स्ट्रैटेजी नहीं. टेल मी. टाइप, क्या मेरे को क्या मैं ये इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड कर सकता हूं? करेक्ट 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 करेक्ट. ठीक है. दैट मीन्स क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, आइटम सेट कैसे मूव करने वाला है, मेरे को मोर देन वन स्ट्रैटेजी दिया रहेगा, उनमें से मेरे को एक सिलेक्ट करना है. क्या मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूं, क्या मेरे को उसको जस्टिफाई करना है? बताओ, क्या मेरे को उसको जस्टिफाई करना है? सुपर्ब समायक. देन इन दैट केस यू डिड नॉट, विद्या एज वेल, यू डिड नॉट रीड द जस्टिफिकेशन का इंस्ट्रक्शन. वाई अदर्स आर इनइफेक्टिव और लेस इफेक्टिव. ठीक है, वाई अदर्स आर इनइफेक्टिव और लेस इफेक्टिव. दिस इज द होल लॉजिक. ठीक है, दिस इज हाउ यू डायग्नोज ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन. Go up. Now read the data. Okay. The fund has also an exposure to AUD. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी इन्वेस्ट कर रहा है, बट मेजर इन्वेस्टमेंट सिंगापुर में ही है. ठीक है. Rodriguez actively manages the AUD position based on short term market views. ठीक है. अच्छा, एक बात बताओ, शॉर्ट टर्म मार्केट व्यूज से एक कॉमन सेंसिकली, ठीक है, एक कॉमन सेंसिकली आपको क्या फीलिंग आता है? ऑप्शंस का या फ्यूचर्स का? ऑप्शंस का या फ्यूचर्स का? ऑप्शंस का. सब ग्रेट ग्रेट, सब लोगों को एक कॉमन सेंसिकली फीलिंग वही आता है. ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑल्दो शॉर्ट टर्म फ्यूचर्स भी होता है. ठीक है. शी करंटली एक्सपेक्ट्स एयूडी टू स्ट्रेंथन बाय 6%. ठीक है, शी एक्सपेक्ट्स एयूडी टू स्ट्रेंथन बाय 6%, राइट, अगेंस्ट द यूएसडी. जस्ट गिव मी 1 मिनट. हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ठीक है, तो मैं बोलना चाह रहा हूं दैट वी हैव एन एक्सपोजर टू एयूडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में एक्सपोजर है, एंड यहां पर बेसिकली Rodriguez actively manages AUD position based on short-term market views, right? She currently expects AUD to strengthen 6% against USD over the next 9 months. ठीक है? The current AUD USD AUD exchange rate is 0.65. तो मैं फोरकास्ट क्या कर रहा हूं? 0.65 कहां तक जाएगा? लेट मी नो. 0.65 कहां तक जाएगा? 0.65 कहां तक जाएगा? गो अहेड. 0.65 कहां तक जाएगा? बेस्ड ऑन माई फोरकास्ट 0.65 कहां तक जाएगा? 0.689. सुपर्ब. 0.689 तक जाएगा. अमेजिंग. नाउ, to express her view, Rodriguez is evaluating the following 9-month European call option strategies. ठीक है, यहां पर यूरोपियन मतलब गलती से भी वो यूरोप वाला यूरोप मत सोच लेना. ठीक है, यूरोपियन कॉल अमेरिकन कॉल होता है ना, वो वाला यूरोपियन कॉल है. ठीक है. ऑलराइट. Her primary goal is to capture the expected AUD appreciation, while her secondary goal is to reduce the upfront cost of the position. ठीक है, her secondary goal is to reduce the upfront cost of the position. Let me stop the share. Let me stop the share and let me ask you guys. Question to you guys is, I'll randomly unmute somebody. I'll randomly unmute somebody. Let's say, for example, I unmute Kritika. Hey Kritika, how is it going? Let me know if you can hear me. Let me know if you can hear me. Hello? Hello. Hey Kritika, Uh, um, how's it going? Hi, sir. Actually, I joined in between class, so I'm not able to really grasp from where we are going. But No worries, no maybe worries. In that case, you can get the recording. No problem. ठीक है? So I'll just allow, I guess, Anshul to speak once. Hey Anshul, let me know if you can hear me. Hi, sir. Hey, so basically अपना ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है? आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फोल्ड. दो ऑब्जेक्टिव्स है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर दैट अप्रिसिएशन. ठीक है. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द अपफ्रंट कॉस्ट. शुड आई Yes, डू अ sir. नेकेड कॉल? टेल मी, शुड आई डू अ नेकेड कॉल और हाँ, शुड आई डू अ No, नेकेड not कॉल? a naked call. So we करेक्ट. should buy the call and sell Correct. also so that our cost get reduced. सुपर सुपर, परफेक्ट.
कुछ भी मेरे को सेल करना चाहिए जिससे मेरे पास प्रीमियम आए एंड कॉस्ट गेट्स रिड्यूस्ड, राइट? इफ Yes, यू sir. रिमेंबर क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि कॉल ऑप्शंस का ही स्ट्रैटेजीज है, राइट? कॉल ऑप्शन Okay. का ही स्ट्रैटेजीज है ना? Yes, sir. सुपर। अब let's now go to the question. Let's try to pre-think the options. मेरे को कॉल ऑप्शन एक सेल करना पड़ेगा एंड एक कॉल ऑप्शन बाय करना पड़ेगा, करेक्ट? तो इन दैट केस आई हैव बीन गिवन द थ्री स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजी वन, स्ट्रैटेजी टू, स्ट्रैटेजी थ्री। बताओ कौन सा होगा? व्हाट वुड बी द आंसर? Okay, Shivek is saying it's something. I'll wait for others to reply as well. Strategy 1, 2, or 3, which one? Strategy 1, 2, or 3? ठीक है, Vansh is saying strategy 3. A Shweta is saying strategy 3. HR is saying strategy 3. Tushar is saying strategy 3. Sakhi is saying strategy 3. ठीक है, आप लोगों ने 3 क्यों बोला? आई एम ट्राइंग टू गेट अ फील आउट ऑफ इट। ठीक है, आपने स्ट्रैटेजी 3 क्यों बोला? लेट मी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ, द गुड थिंग अबाउट यू गाइज एंड इट गोज टू शो कि आपका प्रेपरेशन इज एट इट्स पीक लेवल इज दैट नोबडी चोज स्ट्रैटेजी 1, राइट? बिकॉज स्ट्रैटेजी 1 में अगर मैं ऊपर वाला स्ट्राइक जो मेरा फोरकास्ट है वहां पर अगर मैंने कॉल बाई कर दिया, देन इन दैट केस मेरा तो फोरकास्ट उड़ ही गया ना। माई फोरकास्ट इज 0.65 है, इट हैज अ स्कोप टू मूव अप टू 0.689। तो मेरे को तो आइडियली 0.65 का कॉल बाय करना चाहिए, 0.689 जो है उसका कॉल सेल करना चाहिए, राइट? दिस इज प्योर बुलिश कॉल स्प्रेड इफ वी आर मॉडरेटली बुलिश ऑन अ पर्टिकुलर ऑप्शन, ऑन अ पर्टिकुलर करेंसी, on a particular strike, right? So option 1 तो definitely eradicated, ठीक है, पूरा गया option 1. Now the point is there is a fight between option 2, strategy 2, strategy 3, right? Here how can you clinically distinguish कि कौन सा होगा? एंड डू रिमेंबर, आपको जस्टिफिकेशन में ये बताना पड़ेगा अगर आपने स्ट्रैटेजी 2 चूज किया है तो स्ट्रैटेजी 3 क्यों इनकरेक्ट है। दैट इज द नीड ऑफ द जस्टिफिकेशन, दैट इज व्हाट मेक्स दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट। ठीक है, दिस इज वेयर इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना इज सो इंपॉर्टेंट। justify why others are ineffective like strategy 1 or less effective। जितनों ने भी स्ट्रैटेजी 3 बोला था, इज इट क्लियर वाई स्ट्रैटेजी 3 इज नॉट द करेक्ट आंसर? जितनों ने भी स्ट्रैटेजी 3 बोला था, इज इट टोटली क्लियर वाई इज इट नॉट द करेक्ट आंसर? करेक्ट आदित्य, बट आपने स्ट्रैटेजी 3 मोस्ट लाइकली नहीं बोला था। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, लेस इफेक्टिव, राइट? इट इज लेस इफेक्टिव, इट इज लेस इफेक्टिव। अपने बात कर रहे हैं डिटरमाइन विच स्ट्रैटेजी विल मोस्ट लाइकली सेटिस्फाई रोड्रिगेज ऑब्जेक्टिव एट एक्सपायरेशन। अपने बात कर लिए स्ट्रैटेजी 2। जस्टिफाई वाई अदर्स आर इनइफेक्टिव लाइक स्ट्रैटेजी 1, लेस इफेक्टिव लाइक स्ट्रैटेजी 3। लेट्स अंडरस्टैंड क्यों लेस इफेक्टिव होगा, वाई इज इट लेस इफेक्टिव। स्ट्रैटेजी 3 बोल रहा है कि आप और ऊपर का माने मोर आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करो। ज्यादा आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करने से तो आपका तो प्रीमियम भी कमती मिलेगा, राइट? कमती प्रीमियम मिलेगा। व्हाट वाज योर सेकेंडरी गोल? टू रिड्यूस द कॉस्ट, तो कमती कॉस्ट आपका रिड्यूस हो रहा है, राइट? 0.65 स्ट्राइक का प्रीमियम इफ इट इज $10, इफ इट इज $10, 0.689 का प्रीमियम इफ से फॉर एग्जांपल इज $5, तो आपका नेट में डेबिट स्प्रेड बिकम्स $5, राइट? ऑप्शन नेट प्रीमियम। 0.6955 का जो प्रीमियम होगा दैट इज गोइंग टू बी से फॉर एग्जांपल $4, तो आपका तो कॉस्ट ज्यादा लग गया ना, $6 का। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सब लोगों को क्या क्लियर है पूरा चीज? इज इट टोटली क्लियर टू एवरीबडी?
फेयर फेयर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप लोग सब लोगों ने बता दिया। नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ठीक है, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, हाउ डू यू राइट दिस आंसर? So again, I'm gonna do this exercise. I'm gonna unmute somebody random, and then I'm gonna ask those people. अच्छा, whosoever wants to answer एक बार हाथ उठाओ। क्लासरूम टीचिंग चल रहा है, जो लोग भी हाथ उठाएंगे उनको दूंगा नहीं। सॉरी, but this is where the fun part comes in. So I'm gonna unmute Shweta. I'm gonna unmute Shweta. Hey, Shweta. So what's your total name, by the way? Full name? Hello? Hello, Hi, what's your full name? it's Akuji Shweta. I'm from South, so Okay, okay, okay. No problem, no problem. So are you comfortable with Hindi in that case? yes, yes, I understand. Fair, I fair, fair. speak. Now, are you clear with why strategy 2 is the answer and strategy 1 and 2 or 3 are not? Yeah, because strategy 2 is more cost effective, and वो then that's we that want वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। But are you clear, yes or no? I want just that answer. yes, yes, sir. Fair. How do you write this? Collect your thoughts. Collect your thoughts. Speak it out. जो I'll भी write आप it. बोलोगे, जो भी आप बोलोगे, मैं यहां पर लिखूंगा in the Excel sheet. Whatever you speak it out, मैं यहां पर लिखूंगा. Go ahead. Strategy 2, पूरा फुल hyphen स्ट्रेटेजी टू, फुल स्ट्रेटेजी टू लिखूं? STR2, STR2, most effective, cost effective. cost effective. That's all. That's So all? it is not. That's all, sir. And strategy 1, STR or strategy full? STR1, least effective because least effective. Can I just see the question? I don't want to write because I just want to see the Good. question one. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. You don't want to write because. Everybody should very well listen to this. ठीक है, ये जो मैं किसी आप लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवा रहा हूं, ठीक है, आई रियली डू नॉट वांट टू अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है, आई डोंट वांट टू, बिकॉज अगर आपको अनकंफर्टेबलनेस अभी से फील नहीं होगा, देन इन दैट केस एग्जामिनेशन में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट जस्ट बेयर विथ मी, ठीक है। या दिस इज द क्वेश्चन, गो अहेड। So I let least effective hyphen Wait, what do I need to write? Strategy 1, right? STR1, yes. Hmm. Least effective Least effective, hyphen expected price is 0.6890. And that's all. Can I just mention that? fair. Is that it? And yes, और कुछ लिखना है आपको? actually, I'm thinking, sir. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आराम से, टेक योर टाइम। Um, I think that's all. And for strategy 3, Okay. also least effective. Strategy 3, also least effective. Not cost, not cost. I mean, cost is not reduced. Cost is not Reduced. reduced. चलेगा? Yes. Actually, not completely sure right now. So that's all. That's all. Fair. No problem. In that case, I'm gonna mute you. And Anshika, I'm gonna basically allow you to speak. In this particular answer, would you want to make any improvements? Yes, sir. I Please. actually forgot to mention. Hmm. Can I say my answer again? Yeah, please. Okay, my answer will go as follows. Mhm. Chosen dash STR2, Chosen dash STR2. STR2. Hmm. Can I just write 2 instead of STR as
मैं आपको वही बोलने वाला था, जो होता है ना, मैं लास्ट में बोलता था कि लाइक व्हाट्स माय आंसर वुड हैव बीन 2 Yeah. डायरेक्ट. Okay. Then I chosen STR, chosen dash 2, not chosen 1, ineffective, not नॉट, beneficial for our view, एक मिनट, नॉट चोजन वन, इनइफेक्टिव, not नॉट beneficial for our view, beneficial for our view, 6%. This is also, I 6%. think, I'm yapping too much. नहीं, गो अहेड, आप बताओ, मैं देख रहा हूँ. Then I will come down and then write 3 less. Then write no cost ineffective. That's it. आप बोलोगे कॉस्ट लेस, कॉस्ट इनइफेक्टिव और कॉस्ट No, इनइफेक्टिव. just cost ineffective. So ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डायग्नोज दीज टू आंसर्स. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, I am going to unmute sorry, I just muted you. So yeah, Shweta, can you hear me? Just wait. Yeah, can you speak? Just let me know. Can you speak? Are you on mute or not? Can you speak? क्या आप बोल सकते हो, श्वेता? Yeah, I'm just allowing you to talk. Can you speak out? Yes, sir. No, not Anshul, sorry. I'm just asking Shweta. Yeah. Yeah. Hey, Shweta, can you speak? Yes. Fair. And Anshika was there. Yeah, Anshika, you're still there, right? yes, sir. Fair, Yes. fair, fair, fair. Then in that case, एक चीज देखो आप, and everybody do have a look. यहां पर श्वेता ने आंसर लिखा था स्ट्रैटेजी 2 कॉस्ट इफेक्टिव. द फर्स्ट मिस्टेक इज दैट स्ट्रैटेजी 2 को जस्टिफाई आपको करना था नहीं. ठीक है. दिस इज वेयर शी लॉस्ट सम बिट ऑफ हर टाइम. The first thing that you need to note. ठीक है. Second, strategy 1 least effective, expected price is 0.6890 चलेगा. बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना, दिस, why would you even type these two words? ठीक है. Why would you even type these two words? Okay. ठीक है. स्ट्रैटेजी 3 ऑल्सो लीस्ट इफेक्टिव. लीस्ट का मतलब क्या होता है? देयर कैन ओनली बी वन लीस्ट, राइट? Yes. तो नो प्रॉब्लम, चलो फिर भी उसको मान लिया. कॉस्ट इज नॉट रिड्यूस्ड. इज इट करेक्ट और इज इट नॉट? टेल मी, आप खुद ही बताओ. इज इट करेक्ट और इज इट नॉट? इज द कॉस्ट नॉट रिड्यूस्ड? क्या कुछ भी कॉस्ट का रिडक्शन नहीं हुआ? I mean, it's not enough, like नॉट properly इनफ, राइट? relative बट to आपने strategy. यहां पर लिखा, सी, आपने यहां पर लिखा कॉस्ट इज नॉट रिड्यूस्ड, राइट? Yes. दिस मेक्स इट इनकरेक्ट. इज इट क्लियर? Yes. तो यहां पर आपको पार्ट मार्किंग ही मिलता, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलता. लेट्स गो टू अंशिका's रिस्पॉन्स. चोजन डैश 2, आपको चूज करने को बोला हुआ है. वाई वुड यू इवन राइट द वर्ड चोजन हाइफन? क्यों लिखोगे? जस्ट 2, नीचे आ जाओ, कोई बात ही नहीं है. Okay. फिर Sure. Yeah, Anji. ठीक है. 1 डैश एलिमिनेटेड, ऐसा. ठीक है. डैश 1 में क्या था? 1 में वो इट वाज द, हाँ, रिवर्स. नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर व्यू. सी, इट इज मोर जेनेरिक, बट आपको ये लिखना चाहिए दैट द Direction of the एक्सपेक्टेड प्राइस, ही एक्सपेक्टेड प्राइस 0.689. ठीक है. EXP प्राइस, एक्सपेक्टेड रेट, चलो मान लो एक्सपेक्टेड स्ट्राइक 0.689. ठीक है. डैश कॉल डैश इनइफेक्टिव, दैट्स इट. चलेगा. हाँ जी. नीचे 3 डैश एलिमिनेटेड हुआ. ठीक है. ना यू कैन बी राइटिंग बेसिकली कि 3 में क्यों इनइफेक्टिव था. थिंक इन हिंदी, हिंदी में सोचो. मेरे को ये सोचना है कि यार उसमें प्रीमियम ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा. ठीक है. डैश सेल फार OTM स्ट्राइक. ठीक है. डैश लेस प्रीमियम रिसीव डैश लेस इफेक्टिव, दैट्स इट. Okay.
then I cannot simply write cost ineffective and कॉस्ट get with that. इनइफेक्टिव तो नहीं है, इनइफेक्टिव का मतलब कुछ इफेक्ट ही नहीं है, इट इज इक्विवेलेंट टू वॉट एवर श्वेता हैड रिटन, राइट? Yeah, correct. Yeah. दिस इज द लॉजिक। तो क्या आप सब लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि क्या छोटा छोटा चीजों से आप लोगों को मिस्टेक हो रहा है? ठीक है, आर यू पीपल बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड दिस? what are the areas, how much scope of improvement is there? Are you guys getting more clearer on how to write, how to think on these answers? Let me know in the chat. fair, ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस अपने कवर कर लिए। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड एंड फाइनल वन। ओके, सेम स्ट्रेटजी, वी विल रीड द क्वेश्चन अगेन। फॉर हर टैक्टिकल FX अल्फा पोर्टफोलियो, पता नहीं क्या है बट कुछ एक FX अल्फा पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। व्हाट आर, पहले मेरे को ये बताओ कि कौन सा, मैंने व्हाट आर द कमांड वर्ड्स, व्हाट आर द कमांड वर्ड्स, व्हाट आर द कमांड वर्ड्स? करेक्ट, डीजे, हाँ, आई यूज्ड टू कॉल दीज डीजे क्वेश्चंस। डिटर्मिन एंड जस्टिफाई। क्या आपको ये जस्टिफाई करना है कि मैंने जो सिलेक्टेड है वो क्यों करेक्ट है, या फिर आपको ये जस्टिफाई करना है कि जो मैंने इनकरेक्ट है वो क्यों इनकरेक्ट है? सेकेंड वन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होता है ना कि इवन दो यू पीपल आर साइकोलॉजिकली ओके कि हाँ ठीक है, मेरे को ये जस्टिफाई करना है कि जो इनकरेक्ट है वो क्यों इनकरेक्ट है, ठीक है, सब परफेक्ट है, लेकिन जब मैं चला करके 2 लोगों को पूछा, व्हेन यू कलेक्ट योर थॉट्स, जो आ रहा है वहां पर आप फिर से जस्टिफाई कर दे रहे हो कि जो करेक्ट है वो क्यों इनकरेक्ट है। समझ रहे हो कहां कहां पर मिस्टेक्स हो सकता है, राइट? सो लेट्स सी, ठीक है, तो देर आर 3 स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3, ठीक है। एंड मेरे को एक व्यू है ऑन INR, ठीक है, इंडियन फीलिंग्स, पेट्रियोटिक फीलिंग्स आपको आना चाहिए। सो लेट्स गो एंड रीड द डेटा, ठीक है। Apart from managing the fund's strategic SGT and currency exposures, Rodriguez is also allowed to run a small tactical FX alpha portfolio within the Asian Growth Equity Fund. The sleeve, the word sleeve means portfolio, is or mandate. The sleeve is purely, just give me a minute. Yeah. So the sleeve is purely speculative with the objective of generating alpha from short term macro events, ठीक है। माने INR में, इंडिया में कोई मैक्रो इवेंट होने वाला है, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके जो दिया हुआ है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। The Reserve Bank of India RBI is scheduled to announce its policy rate decision in a few days, ठीक है। The market consensus is that RBI will keep rates unchanged, but Rodriguez expects a surprise rate hike. There is going to be a surprise, which she believes will lead to a sharp appreciation of the Indian rupee against major currencies. सबसे पहले बताओ, क्या आप लोग रीड करके इतना कंफर्टेबल हो या नहीं? लेट मी नो, आर यू गाइज कंफर्टेबल बाय रीडिंग दिस मच? आर यू गाइज कंफर्टेबल बाय रीडिंग दिस मच? है ना, ठीक है। Now, this is what I'm gonna do. This is what I'm gonna do. This will be sort of a revision as well, ठीक है। जिसको CME में, जिस CME में somebody है कि मेरे को थोड़ा सा CME में प्रॉब्लम होता है, तो can you just raise your hand? Somebody just said कि मेरे को CME में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, can you please raise your hand? Okay, so Deepali was the first one to raise. I'll just allow her to speak. Hey Deepali, how is it going? कैसा चल रहा है आपका प्रेपरेशन? It's like going good. Yeah. ग्रेट, ठीक है। तो आपको CME में प्रॉब्लम हो रहा था, राइट ना? इफ यू जस्ट लुक एट दिस वन पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है, यू हैड रेड दिस वन पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है। नाउ आई एम गोना मेक यू सॉर्ट ऑफ रिवाइज CME एंड सॉर्ट ऑफ एसेट एलोकेशन एज वेल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। अपने बात कर रहे हैं, थिंक अबाउट इट। RBI is going to hike the rates.
आरबीआई कब रेट हाइक करता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे या डिफ्लेशन के टाइम पे या रिसेशन के टाइम पे, कौन से टाइम पे आरबीआई रेट हाइक करता है? Inflation. वेरी गुड। इन्फ्लेशन का बात अगर अपने करते हैं तो व्हाट आर द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, टेल मी, व्हाट आर द 5 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल एज पर? Initial recovery, गुड, early expansion, late गुड, expansion, गुड। peak, then contraction. वेरी गुड। तो इन दैट केस अभी कौन सा फेज का एक्सपेक्टेशन चल रहा है कि आरबीआई शार्पली रेट को हाइक करने वाला है? Late expansion or वेरी peak. गुड, वेरी गुड, लेट एक्सपेंशन। बट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आरबीआई रेट को हाइक नहीं करेगा, देन मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? Inflation नहीं होगा. करेक्ट, तो कौन सा फेज एक्सपेक्ट कर रहा है? Uh, in early expansion. करेक्ट, वेरी गुड। सो मार्केट इज एक्सपेक्टिंग अर्ली एक्सपेंशन, जहां पर एवरीथिंग इज बॉयंट, आरबीआई इज नॉट गोइंग टू स्पॉइल द पार्टी। यू एज एन एनालिस्ट यू आर एक्सपेक्टिंग लेट एक्सपेंशन, राइट? लेट Yes. एक्सपेंशन में व्हेन एवरीथिंग इज इन्फ्लेशनरी, आपको कौन सा एसेट क्लास में एलोकेशन शिफ्ट करना चाहिए? गो अहेड। Inflation hedging assets करेक्ट, like बताओ। commodities. वेरी गुड, कमोडिटीज में आपको सीधा शिफ्ट करना चाहिए, राइट? तो एंड Yes. एट द सेम टाइम, हाँ, कमोडिटीज में आपको शिफ्ट करना चाहिए, राइट? एंड अभी राइट नाउ मार्केट में लोग कौन कौन सी चीज में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं? गिव मी एटलीस्ट वन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दैट इज बीइंग ट्रैक्ड एंड इन्वेस्टेड बाय द मार्केट बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग अर्ली इन्फ्लेशन, बताओ, अर्ली एक्सपेंशन, बताओ। Equity, इक्विटी में भी कौन सा, विच टाइप ऑफ इक्विटी? cyclical गुड, industries. वेरी गुड। तो सिक्लिकल इंडस्ट्रीज के पीछे लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं, कमोडिटीज को छोड़ दिए हैं। अगर आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हो यहां पर, नेचुरली व्हाट हैपेंस इज यू आर गेट द कमोडिटी का प्राइसेस एट अ लोअर रेट, राइट? Yes. कमोडिटीज में व्हेन Yes. यू इन्वेस्ट वाया डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में आपको दाम कमती मिलेगा, राइट? इफ यू इन्वेस्ट इन Right. कमोडिटीज, आराम से आप बैठे हुए हो, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हो क्या रहा है कि बिकॉज इन्फ्लेशन इज देयर, मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि अर्ली एक्सपेंशन है, लेट एक्सपेंशन देके कमोडिटीज का प्राइस हाई होगा, ठीक है? नाउ टेल मी, बॉन्ड्स में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, ठीक है, आई हैव माय ओन व्यू, तो आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे या लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे? टेल मी। Short-term bond. क्यों? Because if central bank will hike the rate और long-term bonds का duration ज़्यादा होता है, वेरी so गुड, वेरी गुड। तो यहां पर एक they will डिटर्मिन एंड try. जस्टिफाई क्वेश्चन अगर पूछ लेता, यहां पर अगर एक डिटर्मिन एंड जस्टिफाई क्वेश्चन पूछ लेता, दिस वुड हैव बीन योर आंसर, बिकॉज लॉन्गर हायर ड्यूरेशन डैश एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट हाइक। इज दिस टोटली क्लियर टू एवरीबडी? क्या एक छोटा सा चीज से मैं आप लोगों को पूरा अर्ली एक्सपेंशन लेट एक्सपेंशन वाला फेज रिवाइज नहीं करवा दिया? लेट मी नो, दीपाली। Yes, yes, it was helpful. फेयर, चलो, ग्रेट। ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर मेन थिंग। अपना क्वेश्चन तो आए, ठीक है? ओके, आई थिंक वी आर प्रिटी मच ओके विद द स्टोरी नाउ। लेट्स गेट टू द क्वेश्चन अगेन। तो 3 स्ट्रैटेजीज मेरे को दिया हुआ है, ऑप्शंस का स्ट्रैटेजीज दिया हुआ है, कौन सा आप सबसे पहले बताओ चूज करोगे? विच वन वुड यू गो फॉर? गो अहेड, चूज। चलो चलो, आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीबडी, एवरीबडी शुड आंसर। ओके, 3 2 3 3 3 एटीएम कॉल, अच्छा माने 3। ठीक है, अगेन इट गोज टू शो कि आप लोगों का प्रेपरेशन कितना बढ़िया हुआ है, ठीक है? नो बडी चोज स्ट्रैटेजी 1, ठीक है? नो बडी चोज स्ट्रैटेजी 1, ठीक है? गोज टू शो कि आपका माइंड पूरा रन कर रहा है। हैव अ लुक, क्या बोलना चाह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बेस्ट पोजिशंस रोड्रिगस इन लाइन विथ हर व्यू ऑन आईएनआर, ठीक है? बिकॉज आपको ये जस्टिफाई करना है वाई अदर्स आर इनकरेक्ट, देन इन दैट केस
सबसे पहले मैं तो बोलूंगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। मैं बोलना चाह रहा हूं, जस्ट हैव अ लुक। if RBI increases interest rate, if RBI increases interest rate, तो हॉट मनी फ्लोज जो आप लोग CFA लेवल 2 में पढ़े थे, टिपिकल मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, राइट? हॉट मनी फ्लोज आर सिंपली गोइंग टू कम इन, राइट, इन सर्च ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट, एंड नेचुरली द करेंसी इज गोइंग टू शूट अप। माने आरबीआई ने अगर रेट को बढ़ाया, दैट इज माई फोरकास्ट, आरबीआई रेट बढ़ाएगा। अगर आरबीआई रेट बढ़ाएगा, देन इन दैट केस आईएनआर क्या होगा, अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट? आईएनआर क्या होगा, अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट? अप्रिशिएट, करेक्ट। तो मेरे को आईएनआर पे क्या खरीदना चाहिए, कॉल या पुट? मेरे को आईएनआर पे क्या खरीदना चाहिए, कॉल या पुट? कॉल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नाउ द पॉइंट इज, यहां पर आपको करेंसी पेयर क्या दिया हुआ है, आईएनआर पर यूएसडी। अच्छा, आईएनआर पर यूएसडी पे अगर आपको कॉल दिया हुआ है, तो ये कॉल आईएनआर पे है या यूएसडी पे है? Is this call in INR or is it in USD? USD, correct. So if it is, see, a call on USD means a put on INR. Is this logic clear to everybody? A call on USD is equal to a put on INR. ये पूरा क्लियर है सबको? तो नेचुरली स्ट्रैटेजी वन तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता ना। स्ट्रैटेजी वन कैन नेवर एवर एवर बी माई आंसर। नाउ कमिंग टू दिस, यहां पर देर इज अ कॉम्पिटिशन, ठीक है? सो एक तो है, आई हैव बीन गिवन पुट ऑन यूएसडी। पुट ऑन यूएसडी इज इक्वल टू कॉल ऑन आईएनआर, इज इट ओके? पुट ऑन यूएसडी इज इक्वल टू कॉल ऑन आईएनआर, इज इट ओके? प्लीज कमेंट। पुट ऑन यूएसडी इज इक्वल टू कॉल ऑन आईएनआर, फेयर। स्ट्रैटेजी थ्री रीड्स कॉल ऑन आईएनआर, ये तो सबसे इजी है, ठीक है? यहां पर देर इज अ कॉम्पिटिशन कि मैं कौन सा चीज में बात करूं, ठीक है? दोनों स्ट्रैटेजीज ही वैलिड है, लेकिन लेकिन यहां पर आई हैव अ डिफरेंस, ठीक है? वन इज a 10 delta put and the second one is a 50 delta call, ठीक है? One is a 10 delta put, second one is a 50 delta call. Can I say strategy 2 is deep out of the money? Can I say strategy 2 is deep out of the money? Fair, 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 fair. Very good. And can I say that this is at the money? Can I say that strategy 3 is at the money? Very good. यहां पर मेरा पूरा लॉजिक आता है। देखो दिमाग कैसे चलाते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? द मार्केट कंसेंसस इज दैट आरबीआई विल कीप द रेट अनचेंज्ड बट रोड्रिगस एक्सपेक्ट्स अ रेट हाइक विच शी बिलीव्स विल लीड टू अ शार्प, ये एक वर्ड से आपका आंसर निकलता है, शार्प अप्रिसिएशन ऑफ द रूपी। क्या मैं ये बोल रहा हूं कि रूपी का जो अप्रिसिएशन होगा वो बहुत वायलेंट होने वाला है? क्या डू आई से दैट रूपी का जो अप्रिसिएशन होगा वो बहुत वायलेंट होने वाला है? राइट, दिस इज द फर्स्ट लॉजिक। द सेकेंड लॉजिक इज दैट टेल मी समथिंग, वन से टू का चेंज क्या होता है? वन से टू का चेंज क्या होता है? वन से टू का चेंज क्या होता है? इफ समथिंग वॉज ट्रेडिंग एट 1 रुपी, इट बिकेम 2 रुपी, व्हाट इज द परसेंटेज? 100%, करेक्ट। टू से थ्री का चेंज क्या होता है? टू से थ्री का चेंज क्या होता है? 50%। थ्री से फोर का चेंज क्या होता है? थ्री से फोर का चेंज क्या होता है? 33%। फोर से फाइव का 25%। फाइव से सिक्स का 20%, ठीक है? सिक्स से सेवन का समथिंग 14-16%, वॉट एवर। तो जैसे जैसे मैं बेस को बढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है, नीचे मेरा 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, ठीक है, जैसे जैसे मैं बेस को बढ़ाते जा रहा हूं, क्या मेरा परसेंटेज चेंज गिरते नहीं जा रहा है? फ्रॉम 100 टू 50 टू 33 टू 25 टू 20, क्या मेरा पूरा परसेंटेज चेंजेस गिरता नहीं गया? बताओ। राइट, इट इज रिड्यूसिंग ना। तो इन दैट केस मेरे को ये बताओ, अगर मेरे पास एक डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है वर्सेस मेरे पास एक एट द मनी ऑप्शन है, किस में मेरे को कमती दाम मिलेगा? किस में मेरे को कमती दाम मिलेगा? डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में कमती दाम मिलेगा। सो फ्रॉम एन आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव, ठीक है, अगर दोनों का सपोज अप्रिसिएशन इज 1, ठीक है, लेट मी शो। से फॉर एग्जाम्पल डीप ओटीएम का प्राइस इज $0.5, ठीक है? सॉरी सॉरी,
सॉरी या डीप ओटीएम का प्राइस इज $0.5, ठीक है, ऑप्शन का, एंड एटीएम का प्राइस इज सपोज $5। दोनों का ही, ठीक है, दोनों का ही $1 एंड $1 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो एक तरह से डीप ओटीएम का प्राइस क्या बन गया, $1.5, ठीक है, एंड इसका प्राइस क्या बन गया, $6। यू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। यहां पर आई एम गेटिंग अ परसेंटेज चेंज ऑफ ओनली 20%, ठीक है, आई एम गेटिंग अ परसेंटेज चेंज ऑफ 20%, एंड यहां पर आई एम गेटिंग अ परसेंटेज चेंज, सॉरी, of 200%. Are you understanding? Naturally, I'm gonna go for the deep OTM. Is this logic clear to everybody? Is this logic clear to everybody? क्या पूरा लॉजिक सबको क्लियर है कि मैंने डीप ओटीएम क्यों बोला? इज दिस लॉजिक क्लियर टू एवरीबडी? बताओ मेरे को। Can you please repeat? Sure. What we are trying to say over here is कि basically आज मेरे पास अगर एक 10 डेल्टा ऑप्शन है, ठीक है, somebody was saying कि 10 डेल्टा मैंने पुट मतलब 90 डेल्टा कॉल, अरे वो कॉल अगर होता है तो वो तो दूसरे करेंसी में हो जाएगा ना। ट्राई टू नॉट गेट दिस थिंग्स रॉन्ग। 10 डेल्टा ऑप्शन मेरे पास अगर है एंड 50 डेल्टा ऑप्शन मेरे पास अगर है, ठीक है, 50 डेल्टा ऑप्शन इज बेसिकली एट द मनी, इज इट क्लियर? एंड 10 डेल्टा ऑप्शन मतलब बहुत दूर है, इसलिए उसका जो प्राइस चेंज है, ठीक है, डेल्टा जो है वो बहुत कमती है। एट द मनी का ऑप्शन तो डेल्टा 0.5 होता है ना, टेल मी, ये इतना क्लियर है क्या आपको? एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है, इज दिस क्लियर? इतना क्लियर है क्या आपको? फेयर। एंड 10 डेल्टा मतलब बहुत ज्यादा डीप ओटीएम हो गया फिर मेरा। डीप ओटीएम अगर कोई स्टॉक है, डीप ओटीएम अगर कोई स्टॉक है, मैंने कोई ऑप्शन है, तो उसका तो दाम बहुत कमती छुटंकू होगा ना। बिकॉज अगेन लेट्स गो टू द वेरी बेसिक्स। ऑप्शन का जो प्रीमियम है इट कंसिस्ट्स ऑफ टू थिंग्स, नंबर वन इंट्रिंसिक वैल्यू, नंबर टू टाइम वैल्यू, और वॉलेटिलिटी प्रीमियम जो बोलते हैं। डीप ओटीएम का मैंने, ठीक है, एटीएम का भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू वैसे होता नहीं है, लेकिन उसका जो वॉलेटिलिटी प्रीमियम है दैट इज हायर ना, कंपेयर टू एकदम नीचे जो पुट आपको मिल रहा है, ठीक है, एकदम नीचे का पुट कॉल जो आपको मिल रहा है एकदम ओटीएम वाला, ठीक है, उसका तो एकदम चिंदी 1-2 रुपया 0.5 करके कुछ दाम होगा, राइट? दैट इज द होल लॉजिक। बताओ आप सबको क्लियर है क्या ये चीज? इज दिस टोटली क्लियर टू एवरीबडी? करेक्ट। somebody is saying sharp appreciation में will मैंने can we also mention gamma effect will come in? Even if you do, still देखो, so I'll just unmute Atharv over here because this point needs to be very clear, ठीक है? I'll just unmute Atharv over here and others please listen very minutely what I'm trying to say. When I got this question first, ठीक है, Atharv, are you audible? Just speak out something, anything. Hello? Yeah, Atharv, I have given you permission to speak. You can speak. Just एक बार मेरे को कुछ बोलो कि तुमको आवाज आ रहा है। फेयर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। When I first got this question, I was confused कि एक तरह से एट द मनी का तो गामा ज्यादा होता है ना। डोंट यू थिंक एट द मनी का गामा ज्यादा होता है? एटीएम ऑप्शन का गामा ज्यादा होता है ना? हाँ जी सर, यस सर। अगर एटीएम ऑप्शन का गामा ज्यादा होता है, बाय दैट लॉजिक तो मेरा स्ट्रेटेजी हीट 3 आ रहा है, राइट? बट अपने बात कर रहे हैं कि अ शार्प राइज इन करेंसी वो अगर होता है, देन इन दैट केस एटीएम ऑप्शन का जो डेल्टा है, ठीक है, एटीएम ऑप्शन का डेल्टा वो तो सीधा एकदम राइट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा। इज इट क्लियर? एंड डीप ओटीएम जो है वो एक तो प्रीमियम का इफेक्ट मिलेगा, और वो जो हाई गामा जोन है टुवर्ड्स एटीएम वो आएगा, टुवर्ड्स एटीएम जो वो आएगा उसमें तो गामा का और ब्लास्टिंग इफेक्ट आएगा, राइट? यस सर। दैट इज द होल लॉजिक, ठीक है? तो दोनों लॉजिक से ही आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ रहा है, दोनों लॉजिक से ही आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि गामा कैन नॉट बी द आंसर ओवर हियर।
Fair, Vidya. So I'll explain. So ठीक है, let me unmute you as well. ठीक है, some people have like मैंने थोड़ा सा issue हो सकता है ये point में. ठीक है, Vidya. So I've unmuted you. Just speak once. Let me know if you are there. Yes. Fair. What we are trying to say is, have you heard of this logic कि ATM का गामा, ATM ऑप्शन का गामा हाईएस्ट होता है? Yes. बाय दैट लॉजिक तो अपने को माने बिकॉज वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, अपने को स्ट्रेटेजी 3 में जाना चाहिए बिकॉज इट वाज एटीएम 50 डेल्टा. Correct. Correct. But the point is, the moment this appreciation, this is a directional move, the moment this appreciation happens, ठीक है, तो जो 50 डेल्टा है ना, इट्स नॉट गोइंग टू स्टे 50 डेल्टा, इट इज गोइंग टू गो फॉर आईटीएम. राइट, वो सीधा एकदम 60-75 डेल्टा करीब चला जाएगा, है ना? हेलो. Yeah, it will move towards 1. It will move towards 1, it will move towards, it will become ITM. ITM का जो गामा है वो तो कमती होता है, राइट? Yeah, right. बट Correct. अगर डीप ओटीएम का बात करें तो डीप ओटीएम का जो पुट है, अब वट एवर डीप ओटीएम का जो ऑप्शन है, दैट विल मूव टुवर्ड्स एटीएम. ATM first, yeah. उसका गामा बढ़ने वाला है. Correct, An correct, correct. increased gamma, a lower premium. Don't you think both of these forces are acting together in order to make it more and more attractive given my forecast? Correct. That Correct. is the Correct. logic. ठीक है? Is everybody clear on this? Is everybody clear on this? Fair. ठीक है. तो अपने को अब समझ में आ गया कि स्ट्रैटेजी, द होल की पॉइंट ओवर हियर वाज दिस वन वर्ड, शार्प. ठीक है, शार्प अप्रिसिएशन. नाउ डोंट गो बाय द गामा लॉजिक. ठीक है, या So I have a doubt. So when do we have to decide when means the gamma effect or the delta effect? यू डोंट नीड टू. यहां पर जब आपको स्ट्रेटेजीज इस तरीके का दिया रहेगा, देन इन दैट केस वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आईएनआर ना, सॉरी आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सट्रीमली गुड लॉजिक ओवर हियर. यहां पर आपको कमती दाम देना पड़ रहा है एंड विद अ सिमिलर इंक्रीज एक तरह से आपका आरओआई इज गोइंग टू बी वेरी हाई. राइट, गामा में आपको बहुत घुमा करके लिखना पड़ेगा वो पूरा चीज को, एंड यू डोंट इवन नीड टू जस्टिफाई व्हाई अदर्स आर इनकरेक्ट फ्रॉम दैट थिंग योर फॉर 2 रीजंस. आपको 2 रीजन से तो जस्टिफाई नहीं करने को बोल रहा है ना, जस्ट मेंशन द सिंपलर वन ना. Got it. फेयर. नाउ मोमेंट ऑफ ट्रूथ, हाउ डू यू राइट दिस आंसर? हु वांट्स टू आंसर? बताओ कौन आंसर करेगा इस बार. वो सब नहीं करूंगा, ठीक है, जो आंसर जिसको करना है बताओ, आई विल जस्ट अलाउ यू टू स्पीक. Okay, Karan has raised his hand. I'm gonna allow Karan. At the same time, I'm gonna allow Samaya as Sir, well. actually, I have one doubt in this. Sure. इसमें like if we are purchasing put option on INR upon USD, so that means कि USD will depreciate. But जब USD will depreciate तो वो हमें since वो हमने OTM put purchase करी है तो हमें वो immediate protection नहीं मिलेगा, वो हमें बाद में मिलेगा since it's an प्रोटेक्शन का तो बात ही OTM नहीं. put. यू ना ना ना, यू आर गेटिंग इट वेरी रॉन्ग बडी. ऐसा तो मत ही बोलो यार. देखो, अगर आप पुट ऑप्शन ऑन यूएसटी बोल रहे हो, ठीक है, अगर आप पुट ऑप्शन ऑन यूएसटी बोल रहे हो, अपने बात कर रहे हैं यूएसटी के गिरने का, राइट? यूएसटी के गिरने का अगेंस्ट आईएनआर. डजंट इट मीन कि आईएनआर बढ़ेगा अगेंस्ट यूएसटी? सो Right, right. इफेक्टिवली इट इज अ कॉल ऑप्शन ऑन आईएनआर. इस लॉजिक से आप सोचो चीज को. Yes, correct. But it's an OTM call option. मतलब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि वो हमें फिर appreciation भी लेट मिलेगा since it's an OTM call on नहीं, INR. यू अरे, अगर इफ इट इज एन ओटीएम ऑप्शन, ठीक है, तो आपको तो उसका प्रीमियम भी कमती देना पड़ा, राइट? ओटीएम का तो Right, प्रीमियम बहुत कम होता है ना. right. एंड जो होना है व्यू पॉइंट जो है वो तो सेम ही होगा दोनों के लिए, इस स्ट्रैटेजी के लिए भी, इस स्ट्रैटेजी के लिए भी. द मार्केट व्यू दैट यू आईएनआर इज गोइंग टू शार्पली अप्रिशिएट इज गोइंग टू बी सेम फॉर दिस स्ट्रैटेजी एंड दिस स्ट्रैटेजी. Correct. राइट, तो वॉट एवर आईएनआर इंक्रीजेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने $1 का सीधा इंक्रीज दिखाया, 1 का इफेक्ट Correct. मैंने दिखाया, ठीक है. 1 का इफेक्ट ऑन अ बेस ऑफ 0.5 एंड 1 का इफेक्ट ऑन अ बेस ऑफ 5 इज वेरी वेरी डिफरेंट. One gives Right. you 20% return, one gives you 200% return. Is it correct? Correct. Okay, fair. ठीक है. Got it. If this was your thing, then you can lower your hand, no problem. Sure. In that case, I'm gonna ask, I think Yash, I have unmuted you.
Okay, I'll ask Samayak to speak as well. Yeah. Hey, Samayak, batao. How would you write this answer? So firstly, we'll go for this. We will write the correct answer. That is strategy two. Strategy 2. Should I Yeah. write the whole word strategy 2? STR2. STR2. ठीक है. Would you want me to write something over here, or do I need to shift to the lower side? बताओ. No, we should shift to the lower side because we were just supposed to No tell which. problem. बताओ. Go ahead. Yeah. So in next line, we'll write that. Why not strategy one? Like, This. yeah. So it will be like call on INR USD profits only if INR USD rises, which is opposite to our view. चलेगा? Yes, sir. Is it okay? Should I write anything else? No, sir. ठीक है. Next. Now, See the screen. Go ahead. now we'll talk about strategy 3. What should I write? STR3 dash 50 delta call will benefit from euro appreciating against INR. Is that thing? Yes, sir. I mean, कोई बात नहीं. Take your time. Is that what you would want to write? yes, sir. Like in the end, we can write so both the statements are inconsistent with our view. If we had to. चलेगा? Yes, sir. Okay, fair. Let me just mute you now. Okay, by the way, is it that you people are not able to see the screen? मैंने share नहीं किया था क्या? Okay, sorry. This is what your answer was, right? Samayak, this was your answer? Give me 1 minute. Samayak, was this your answer? Let me know. Hello? Okay, I think I have muted you. Apologies for that. Yeah. Yes, sir. This was my answer, but I can see that there are many extra words that should not have been written. Okay, fair. No worries. Who would want to improve on this answer? Please raise your hand. Who would want to improve on this answer? Please raise your hand. Okay, Vansh Madwani. Hi, Vansh. Hello. Hey, so, बताओ, how would you want to improve on this answer? If you were the grader, ठीक है, then how would you want to improve on this answer? सर पहले तो फर्स्ट लिखूंगा मैं 2 STR हटा देंगे 2, ठीक है. फिर 1 लिखेंगे 1 एलिमिनेटेड 1 eliminated स्लैश slash सॉरी स्लैश क्या डैश dash. ऑपोजिट व्यूज मतलब सोचो. Keep it calm. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Think. क्यों मतलब सर ऑप्शन गलत है तो उसको फिर ऑपोजिट व्यूज ऑन कॉल लिख सकते हैं This ये लिखोगे आप? ना ऑन करेंसी का ये लिखोगे? हाँ ठीक है. Then is it all, or would you want to write something? नहीं बस इसमें फिर बाकी 3 एलिमिनेटेड डैश लेसर
less return on, नहीं रिटर्न लग दो सर, लेस अप्रिसिएशन। हाँ। Is that it? हाँ। Okay. ठीक. So let me clarify this entire thing and this bit as well. ठीक है. Think in Hindi, write in English. Two is एकदम perfect. ठीक है. STR मेरे को नहीं लिखना है. That's the first logic. One eliminated, three eliminated. I am very happy. आपने इस तरीके से लिखा. I am very happy. First of all. ठीक है. वन जो है वो क्यों एलिमिनेट हुआ? यहां पर आप बोल रहे हो ऑपोजिट व्यूज ऑन करेंसी. सी दिस इज द ट्रैप. ठीक है. आप एक चीज समझो, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी फैक्ट कि वहां पर कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन वाला जो लॉजिक है, ठीक है, वो मेरे को क्लियर होना चाहिए. सो यू मेड इट प्रीसाइज, आई अंडरस्टैंड, यू मेड इट कंसाइज, बट यू मेड इट टू कंसाइज, सो कंसाइज दैट कि वो चीज एकदम मैंने मेरे को क्लियर ही नहीं हो रहा है. व्हाट डज ऑपोजिट व्यू ऑन करेंसी मीन? अंडरस्टैंडिंग? हेलो? Yeah. Yes, What yes, does yes. opposite view on currency mean? So if I were to write the answer, let me just go back to the question. It was a 5 delta call on USD, right? I would have written it like this. 1 eliminated dash call on USD, put on INR. Expect INR to appreciate. That's it. Tell me, is my answer concise? क्या मेरा आंसर कंसाइज है? Yes. Does it communicate the requisite logic? हाँ. Did I use the main thing of today's takeaway of today's session? Did I use the? क्या मैंने कहीं पर यूज किया? नहीं. दोनों आंसर को अगर मैं एक तरह से साइड बाय साइड कंपेयर करता हूं, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू सी दिस डिफरेंस? क्या एक्स्ट्रा मेरे आंसर में है दैट मेक्स इट मोर कम्युनिकेटिव? Perspective from the options. करेक्ट ना? तो द पॉइंट इज दैट यहां पर मेरे को कोई चीज क्लियर ही नहीं हुआ. व्हाट डज ऑपोजिट व्यूज ऑन करेंसी मीन? आई डोंट हैव एन ऑपोजिट व्यू बाय द वे. है ना? बोलो, इज इट फाइन? Yes. फेयर. ठीक है. 3 एलिमिनेटेड. ग्रेट. लेस अप्रिसिएशन जो आपने लिखा, आई अंडरस्टैंड, लेस अप्रिसिएशन इज फाइन, बट इसको ना, दिस इज ओके, दिस विल बी एक्सेप्टेबल, बट इट कैन बी मेड अ लिटिल बिट बेटर. बेटर इन द सेंस थोड़ा एक दो वर्ड अगर आप और लिख दो, लाइक 50D, डेल्टा भी नहीं लिखना है मुझे, 50 डेल्टा ऑप्शन, कॉल भी नहीं लिखना है, ठीक है, एटीएम प्रीमियम हायर ग्रेटर देन 10D ऑप्शन OTM higher ROI. That's it. Does it make sense? Yes. Is it concise? Yes, it is concise. Is it effective? Yes. Is it efficient? Yes, sir. Yes. क्या मैंने कहीं पर द यूज किया? नहीं. ठीक है. इट इज क्लियर, कंसाइज, इफेक्टिव. तीन चीजें ही मेरा जो है वो परफेक्टली सेटिस्फाई करता है. राइट? दिस इज द होल लॉजिक. ठीक है. दैट्स द थिंग. ठीक है. सो दैट वुड फर्स्ट ऑफ ऑल बी ऑल. आई एम गोइंग टू जस्ट unmute almost everybody once. Just unmute. Yeah. Sir, I wanted to ask one thing. हाँ, please. In the answer that we wrote just now, do we not have to mention that why ROI is greater? So we don't have to tell that it is because of the base effect. You don't need to mention all that. कुछ भी mention करने का वो सब जरूरत नहीं है. So what they will understand that Yeah, 100%. You are not at all, I'll tell you, you are not at all required to explain anything to them. उनको सब कुछ पता है. ठीक है. ये इंडियन मेंटालिटी से प्लीज आप लोग निकलो. ठीक है. उनको हर चीज A to Z सब कुछ पता होता है. ठीक है. दीज पीपल आर CFA चार्टर होल्डर्स ओनली.
इंडियन मेंटालिटी का तो इन मैंने अजम्पशन ही है कि हम लोगों को कुछ पता नहीं है भाई, तुम हमको सिखाओ, स्टार्टिंग से तुम हमको सिखाओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट्स द लॉजिक। ठीक है। Actually, in सो one of the या classes, Sanjay sir mentioned, like in one of the constructive responses, he told that we can write this, that the you base will be given. can see, you can definitely you can, but why would you make it more efficient ना? Why would you want to? क्यों करना है आपको? Got it, sir. Thank you. ठीक है। सो आई हैव अनम्यूटेड प्रैक्टिकली But एवरीबody। आई होप एवरीबody एंजॉयड द सेशन। ठीक है। फॉर द या Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स रियली गुड। सो Sir, apologies, I have actually sir, taken I have one doubt. I think we need to close apologies here because next meeting immediately मेरा scheduled है। ठीक है। So whatever doubt you are having, you can just mention it in the Sir, Telegram. not a doubt, sir. Just wanted to ask you, Fair. like, right now my candidate resources are just 20% completed. How should I go about? Fair. If your candidate resources are 20% completed right now, start giving mocks. Mock छोड़ के अभी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। In the last week you should just keep on giving mock and mock. Mock दो, एनालाइज करो। ठीक है। आई जस्ट मेंशन कि कैसे एनालाइज करना है, आई जस्ट गिव यू अ टेम्पलेट। ठीक है। बट खुद से बनाओ, इट्स मच बेटर फॉर एनी क्वेश्चन। अगर आपका मॉक एसएससीआई का दिया भी है, ठीक है, स्टिल यू कैन डू दिस। ठीक है। राइट सोर्स। ठीक है। एक एक्सेल शीट नॉर्मल टेम्पलेट बनाओ। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल सोर्सेस एसएससीआई ग्रैंड फिनाले मॉक 1। ठीक है। सॉरी, या एसएससीआई ग्रैंड फिनाले मॉक 1। क्वेश्चन नंबर मे बी से CR1Q3। ठीक है। टॉपिक कौन से टॉपिक से है? मे बी इट इज फ्रॉम करेंसी। ठीक है। देन यू डू करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू गॉट इट इनकरेक्ट। Okay. If incorrect, why? See, try to diagnose this particular issue. This is more important than just mindlessly sitting for mocks. ठीक है। If incorrect, why? क्यों incorrect है वो आप देखो। It might be a silly mistake. If it is a silly mistake, ठीक है, silly mistake, क्यों silly mistake है? Maybe you forgot to, यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं ये पूरे आइटम सेट में, वेयर कैन यू मेक अ सिली मिस्टेक? forgot to maybe say for example account for the negative correlation bit। इसका इस कारण से, इस पर्टिकुलर कारण से मे बी, जस्ट गिव मी 1 minute, गिव मी 1 minute guys, these are the repeated calls that I have to keep on taking। ठीक है ना, apologies। ठीक है। anyway, forgot to mention account for the ये this thing। ठीक है। then you try to understand कि यार अगर मेरा incorrect है, ठीक है, silly mistake हुआ है, what is the reason for that silly mistake? See, silly mistake can be because you tried to rush। यू ट्राइड टू रश मे बी बिकॉज आपका कोई पहला जो क्वेश्चन है वहां पर आपका बहुत सारा टाइम चला गया था। तो पहला कौन सा क्वेश्चन था? मे बी इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू इधर अ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स और एन आइटम सेट। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आइटम सेट जो है वहां पर मे बी एसेट एलोकेशन इज अ टॉपिक जहां पर आपको प्रॉब्लम था। फॉर दैट आपको फिर क्या करना है? गो टू द कैंडिडेट रिसोर्सेज, वहां पर एसेट एलोकेशन का थोड़ा सा क्वेश्चन कर लो। इफ इट इज अ स्पेसिफिक एरिया, बी प्रिसाइज एंड डू दैट क्वेश्चन। ठीक है। दैट, and it's not like, see, I'm speaking common sense। if correct, why? that's it। करेक्ट भी जो होता है आपका लक से भी करेक्ट हो सकता है, आपका लॉजिक से भी करेक्ट हो सकता है। प्रॉब्लम विथ लक इज दैट इट इज नॉट रिपीटेबल। अगर आपका लक से करेक्ट हुआ, देन जस्ट हैव अ लुक एट द सोल्यूशन, व्हाई इज इट दैट कि आपको वो सोल्यूशन आया नहीं। ठीक है। एंड लास्ट में दिस बिकम्स योर मेन थिंग, टेक अवे। मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि नेक्स्ट आप क्या गलती नहीं करोगे, एंड अगर सोल्यूशन पढ़ के आपको एक्स्ट्रा कुछ जानने को मिला वो आप यहां पर रख दो सिंपली। इससे इफ यू कैन डू दिस फॉर क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, जस्ट अगर आप एसएससीआई का मॉक्स कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स का जो सारा सीरीज था, ग्रैंड फिनाले जो है, एंड ऑल द आइटम सेट्स दैट यू पीपल हैव डन, ठीक है,
एंड सीएफए इंस्टीट्यूट का मॉक्स भी करते हो, इफ यू हैव टाइम डू द कैंडिडेट रिसोर्स बिट एज वेल, ठीक है. इफ यू कैन जस्ट डू दिस वन एक्सरसाइज, दिस टेक अवे कॉलम, दिस बिकम्स योर सेवियर, ठीक है. 2 days before the exam you can just look at the takeaway column, ठीक है. एक्स्ट्रा मेरे को क्या चीज ध्यान में रखना है, दैट्स द फर्स्ट थिंग, ठीक है. उसके अलावा इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक विच इज रिलेटेड टू पैटर्न, ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न, सपोज आपका सारा चीज ठीक हो रहा है बट यू आर अगेन डूइंग अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स, सिली कंसेप्चुअल, ठीक है. ये वाला प्रॉब्लम अगर होता है, मोस्टली यही वाला प्रॉब्लम होगा, बिकॉज एट दिस स्टेज तो यार सिली क्वेश्चन, सिली मिस्टेक्स आर द ओनली थिंग दैट यू गाइज आर मस्ट बी फेसिंग, ठीक है ना. तो इन दैट केस आपको क्वेश्चन करने से पहले यू नीड टू जस्ट मे बी ब्रीद आउट अ लिटिल एंड से कि भाई सिली मिस्टेक मेरे से होता है, एक्सेप्ट. देन उस मेंटालिटी से अगर आप क्वेश्चन को करते हो, पकड़ते हो, ठीक है, देन इन दैट केस वेरी लेस चांस कि आप सिली मिस्टेक करोगे, बिकॉज यू आर सेंसिटिव टू दिस वेरी फैक्ट कि मैं सिली मिस्टेक्स करता हूं, ठीक है. तो मैं इंफॉर्मेशन को बेटर देखूंगा, राइट. दैट इज द होल लॉजिक, ठीक है. Thank you so much. It will help. या डेफिनेटली. तो ये तो 100% आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है. एंड या गो अहेड. सॉरी टू कट यू सर. सर एक बार सिर्फ आप कमांड वर्ड्स कैन यू जस्ट रीइटरेट जो अपन ने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, बिकॉज़ आई फॉरगॉट टू राइट इट डाउन दैट डे. नहीं, वो राइटिंग का कोई बात नहीं है, मैं भी तो वैसे ही बोला था. सी द ब्रॉड सेट, सी यूनिवर्सल सेट ऑफ कमांड वर्ड इज डिटर्मिन एंड जस्टिफाई, ठीक है. डिटर्मिन एंड जस्टिफाई का मल्टीपल वेरिएशंस है, ठीक है. एक है इवैल्यूएट, एक है डिस्कस, ठीक है, एक है एक्सप्लेन, कि तीनों का ही एग्जैक्ट सेम मतलब होता है. डिटर्मिन एंड जस्टिफाई बोलना चाह रहा है, ठीक है. सेकेंड इज कैलकुलेट, ठीक है. कैलकुलेट अगर कोई क्वेश्चन बोलता है दैट मीन्स इट इज जस्ट अ नंबर, राइट. इट इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर आपको मांग रहा है, ठीक है. अगर आप बढ़िया से फॉर्मूला, एकदम परफेक्ट अपशॉट फॉर्मूला और ठीक ठाक से लिखते भी हो, बट देयर इज नो नंबर, स्ट्रेट अप मार्क्स 0 दे देगा, सीधा 0 बैठा देगा, ठीक है. एंड इवैल्यूएट क्वेश्चंस, डिस्कस क्वेश्चंस में अगर आप कुछ नंबर से इन्फर कर पाते हो, इट इज जस्ट गुड, ठीक है. दैट वुड बी द लॉजिक. थैंक यू सर. फेयर, ठीक है. And and last thing from my side for today's session is that, guys, it's okay. You people have studied enough. You people have went through a lot. ठीक है. Pat yourself in the back because you have cleared CFA level 1 and CFA level 2. Level 1 clear करते time, let me be very very clear. Clearing CFA level 1 is 10 times tougher than clearing actuaries exam. ठीक है. एक्चुअरीज एग्जाम का जो फर्स्ट सिटी लेवल है, बिकॉज उसमें तो एक ही चीज है, स्टैटिस्टिक्स. यहां पर आपको शिफ्ट करते रहना पड़ रहा है ना. इक्विटी से बॉन्ड से आपका ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, ऑल्टरनेट से पोर्टफोलियो. ओवरकम दैट चैलेंज. लेवल 2 जहां पर आपको पूरा ब्लास्ट ऑफ टाइम सीरीज, रिग्रेशन, ये सब चीजें था, ठीक है. फॉर द फर्स्ट टाइम यू वर टॉट अबाउट द योर विनियट्स, आइटम सेट्स. इतना डेटा देके इतना वैल्यूएशन करना, ठीक है. इट वॉज डिफिकल्ट. You cleared it. You people are here. This is the last mile and you will clear with flying colors. ठीक है? It's okay. Do not overstress about the result. कुछ नहीं होगा, nothing will happen. ठीक है? Do not overstress about the result. जो भी result आएगा, it will be in your favor only. ठीक है? It will be in your favor only. And see, दूसरों का opinion matter नहीं करता है. Let me be very clear. Somebody is doing an MBA from Harvard Business School. आपको अभी CFA level 3 clear करना है, कल clear करना है. You have to prove yourself. No, you don't. You're not responsible to prove to the world. You're just responsible to yourself, and do not be that hard on yourself. ठीक है? I was hard on myself and I paid the price heavily. ठीक है? So from personal experience, the more calm you are, the better you are. ठीक है? The better you will be able to perform. Last piece of advice, do not study one day before the exam. थोड़ा movies देखने जाओ, ठीक है. Speak to your girlfriends, your boyfriends, and just simply enjoy that one last day. ठीक है. So yeah, Spider-Man मेरे को देखना है. ठीक है. चलो, great. I think we will end the session today. ठीक है. I hope I did not bore you guys so much, and I hope I was able to add value to your session. And thank you so much for giving me the time. ठीक है. We will end the session. Yes, sir. Thank you so much. All right. चलो. Thank you so much. Thank you, sir. No worries. Thank you so much. Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Bye. We need more such sessions. Thank you. Thank you. चलो, bye.